Name is Nilesh Gattani, and it is my privilege and pleasure on behalf of Goldmine Stock to welcome all of you here. Today, we have gathered here to get insights on how to make investment decisions in this extraordinary times. We are delighted to have with us to participate Director of Goldmine Group and Mr. Krishna Nanoliaji, Chairman and CMD of Nanolia Group. Thank you for joining. Before we get started, I would like to give a brief introduction of both of our respected speakers. Mr. Samir Gandhiji, Director of Goldman, I met. He has an over 25 years of experience in capital market and markets related to investments, including commodities, real estates, and many of the investments horizons. Along with investment world, he is also involved in various ventures in Goldmine, which incorporates manufacturing in field of plastics and chemicals, import and exports, and many of them. He is known for his dedication towards his work and commitment towards client. Now, I would like to introduce Mr. Krishna Nanoliaji, who is founder and CMD of Nanolia Group, one of the respected and widely known in this industry for his in-depth work on Indian growth story in general and brokerage industry in particular. Today, he is one of the most sought after speaker and columnist in field of investments. Under his leadership, the company has emerged as the fastest growing and respected brand in field of fund management and research advisory. As a reminder, I would like to request everyone to be in listen only mode, and there will be an opportunity to ask questions. And during this event, if you have any questionnaire or query, kindly type under the chat box. We will try to take up the questions once webinar concludes. Now, I will request Mr. Krishna ji to take ahead this webinar. Thank you for listening, everyone, and over to you, sir. Krishna sir, over to you. Good evening, everyone. Samir ji and everyone, good evening. First, thanks for this opportunity. I wish you all a very happy and healthy life. Today's discussion is investment decisions during extraordinary times. So, if you look at it, you will find that इसका दो part है इस पूरे discussion का. First is investment decisions and second is extraordinary times. Extraordinary times, something which is not within our control. ये times है जो अपने हिसाब से चल रहा है वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. It is very much like जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये एक वेदर की तरह और पिच की तरह है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. And investment decision is something which is within our control. कि उस टाइम्स में हम लोग ऐसा क्या करें, उस पिच में हम लोग कैसा, उस वेदर में हम लोग कैसा प्ले कर पाए ताकि वी कैन विन. तो वी ऑल नो, यदि हम लोग आज के कंटेक्स्ट में बात करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हम लोग बहुत थियोरेटिकली नहीं जाएंगे. आज के कंटेक्स्ट में अभी की जो ये टाइम चल रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, ये सबको पता है. मार्केट फ्रॉम 12,500 टू 7,500, देन अगेन 9,500. सो ये एक पहले टाइम की जो वेस्ट इंडीज की एक क्रिकेट पिच की तरह का रिमाइंडर आ रहा है और जहाँ पर वेदर भी विंडी भी है और जस्ट लगता रेन भी हुआ था. तो थिंग्स आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड वेरी चैलेंजिंग. तो ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या डिसीजन लेना चाहिए आज के कंटेक्स्ट में. इसी में हम लोग देखे होंगे कि मार्केट एक न्यूट्रल है, वो किसी के प्रति बायस नहीं होता है. वो मार्केट 12,500 यदि था तो सबके लिए था, 7,500 था तो सबके लिए था, अभी भी है. किंतु इस पूरे जर्नी में बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी, बहुत लोगों ने पैसा खोया भी, बहुत लोगों ने कम पैसा खोया. एक ही मार्केट के अंदर में अलग अलग एक्सपीरियंस रहा. तो इस टाइम पर एज एन इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि हम लोग ये जो पूरा पीरियड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो पीरियड है इसमें हम लोग कुछ बेहतर डिसीजन के थ्रू एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह हम लोग भी वेल्थ क्रिएट कर सकें. लेकिन नॉर्मल एक कॉमन इन्वेस्टर का अभी नजरिया क्या होता है और एक जो भी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होंगे, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होंगे,
जो ये पैसा कमाते हैं उनका देखने का नजरिया क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। ठीक है, अभी जो आम इन्वेस्टर है ना, उसकी अभी उसकी क्या अभी साइकोलॉजी होगी, तो मैंने इसको जस्ट एक ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। एक ये जो ग्राफ है, एक इंडेक्स का ग्राफ है, और साथ में एक जो ग्रे कलर का ग्राफ है, दैट इज वो विक्स का है, वो यहाँ पर वॉलिटिलिटी है, लोग फियर एंड ग्रीड का ग्राफ है। तो मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रीड एंड फियर अपने डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसको समझने के लेकर, इसको थ्योरी में नहीं समझ करके आज के कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एक कॉमन इन्वेस्टर वो अभी किस माइंडसेट से गुजर रहा होगा। क्योंकि वॉरेन बफेट का ये बेंजामिन ग्राहम का कहना है ना कि इन्वेस्टिंग इज 75% साइकोलॉजी एंड 25% इज स्किल्स एंड नॉलेज। तो अभी साइकोलॉजिकली हम लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? अभी सबने देखा 7500 का निफ्टी का जब लेवल बना तो उस समय एक्सट्रीम पैनिक में थे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे हम लोग लोअर में, यहाँ पर हमारा इट वाज अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम पैनिक। दिस वाज टाइम ऑफ प्योर पैनिक। वहां से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी किया, एक रीजनेबल अच्छा रिकवरी किया, तो वो रिलीफ आया वापस। जब 7500 से वापस 9000 के आसपास आया तो सब रिलीफ आना शुरू हुआ। फिर वापस अभी थर्सडे जो क्लियरिंग हुई उसमें क्लोज टू अगेन 10,000 जाने की कोशिश किया, 9700 800 के आसपास में। तो वहां पर अभी एक कॉमन इन्वेस्टर्स का अभी क्या होगा, सबका लगभग डाउट हो रहा होगा क्या अभी न्यूज तो खराब है, ये क्या हो रहा है, ये जर्नी वापस मार्केट ऊपर होगा नहीं होगा, ये तो मार्केट टिकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी सब डाउट वाले स्टेज में। ये डाउट वाले स्टेज में नॉर्मली क्या करते हैं लोग, या तो वेट करते हैं या पार्शली सेल करना शुरू कर देते हैं। और सेल नहीं भी करते हैं तो अभी मान लीजिए मार्केट वापस डाउन होगा, यदि कोई कारण से करेक्शन हुआ और वापस उसी लेवल के आसपास गया, मान लीजिए जैसे 9800 के आसपास गया, तो मार्केट किसी कारण से वापस 9000 9300 आता है, वापस यदि ऊपर जाएगा तो ऐसे डाउट वाले लोग यदि इस टाइम नहीं बेचे तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ बेच देंगे, पार्टली या फुल्ली। ये डाउट का स्टेज है कि न्यूज तो खराब है, चारों तरफ है, ये मार्केट नहीं रहेगा, ये डाउट का स्टेज है। इससे जब मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा तो वहां पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10,300 10,900 11,000 के बीच में रह गया वापस, तो कोई कारण से जब मार्केट जाएगा उस समय चांस होगा क्या वो फुल्ली या पार्शली एग्जिट कर जाएंगे। और वो जब एग्जिट करेंगे मार्केट वापस जाए, यदि ऊपर जाएगा, वहां से फर्दर जब ऊपर जाएगा तो वो डिनायल मोड में रहेंगे। नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी तो न्यूज ऐसा खराब है, ये तो मैं तो निकल गया, मार्केट तो डाउन होगा ही। कभी कभी मार्केट डाउन भी होगा तो खुश भी होंगे, देखे मैंने तो राइट डिसीजन ले लिया। वो डिनायल मोड में चलते रहेंगे। किंतु मार्केट का अपने एक नियति है, वो सिंपैथी जरूर करता है शॉर्ट टर्म में लोगों के इमोशंस के साथ में, किंतु उसकी अपनी एक जर्नी है। मार्केट यदि वहां से फर्दर ऊपर जाता है तब क्या होगा, वहां पर उनको रिग्रेट होना शुरू होगा। क्या उनको फिर थोड़ा सा शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैं तो ऑलरेडी बहुत नीचे था, मैं तो ऊपर का परचेज किया हुआ था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो गई, मेरा पड़ोसी तो पैसा कमा लिया। वहाँ रिग्रेट होना शुरू होता है और वहीं पर ग्रीड का बर्थ भी होना शुरू होता है। तो फियर की जर्नी से निकला और ग्रीड का वहां पर बर्थ हो गया रिग्रेट के साथ में। अब वो मार्केट फर्दर यदि ऊपर जाता है तो वो 2-3 बार ऊपर, मान लो एग्जांपल के लेकर कि आप 14,000 गया, वापस यदि 13,000 आया, 13,000 के बाद 12,500 बार बार आ रहा है, तो वो 7,500 को भूल जाएगा, 10,000 को भूल जाएगा, उसको वापस 12,000 अच्छा लगने लग जाएगा और वहां पर वो दोबारा फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। और चूंकि वो इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट जब फर्दर वहां से बढ़ता है 12,500 30,000 यदि फिर गया वहां पर, तो उसको लगेगा मैंने तो बहुत बड़ी जर्नी मिस कर दी, अब मैं एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाऊं। तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लेकर फिर वो मार्जिन फंडिंग और फ्यूचर्स ऑप्शंस में एक्स्ट्रा लीवरेज लेना शुरू करता है। तो ये पूरी जर्नी है। अभी सब लोग, मुझे जहां तक उम्मीद है, मैं जितने लोग से इंटरेक्ट करता हूँ, अभी 99% लोग अभी डाउट वाली जर्नी में अभी चल रहे होंगे। और ये मार्केट यदि यहाँ से वापस थोड़ा बहुत करेक्शन लिया तो डाउट उनका और स्ट्रांग होता चल जाएगा। ये नॉर्मल एक इन्वेस्टर की एक सोच है। ऐसे इन्वेस्टर अभी जो कॉमन इन्वेस्टर्स और क्या कर रहे होंगे, ताकि वो, चूंकि मेहनती लोग हैं, हम लोग सब लोग मेहनती लोग हैं, तो सबको लगता है कि यदि शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो मुझे और न्यूज सुननी है और मैं पढ़ूंगा, मैं यदि और पढ़ूंगा और न्यूज को अच्छे से समझ जाऊंगा तो मैं शायद इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो जाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। तो
आज के समय में ये भी बहुत मुश्किल है, बहुत न्यूज़ सुनना भी, क्योंकि घर में अपने लोग हैं, वाइफ का अलग प्रायोरिटी है, बच्चे का अलग प्रायोरिटी है, उसमें हम लोग को भी अलग कुछ न्यूज़ देखनी है। उसी में से लड़ झगड़ के यदि हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा CNBC देख लें, ज़्यादा ET नाउ देखें, और कहीं पर वो खूब और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है तो इकोनॉमिस्ट पढ़ेंगे, टाइम्स पढ़ेंगे हम लोग। किंतु मैं एक आपको डेटा यहाँ पर दिखाऊं, मैं खूब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट एक फील के लेकर, क्या जितनी भी मैगजीन्स है, ये वर्ल्ड की बेस्ट मैगजीन्स है, इसका मैंने एक स्टडी की, एक कई अलग अलग टाइम पर इस पर स्टडी हुई थी, उसी को मैंने एक जगह लाने की कोशिश की। क्या ये पिछले करीब 70 साल का डेटा है, क्या जब भी किसी मैगजीन के कवर स्टोरी में कोई भी न्यूज जब बनी, दो ही टाइप की न्यूज बनेगी कवर स्टोरी में, या तो खूब एक्सट्रीम अच्छी न्यूज बनेगी या एक्सट्रीम पैनिक की न्यूज बनेगी। सरप्राइजिंगली वो जब कवर स्टोरी में कोई न्यूज आती है, उसके उस महीने के बाद का 11 महीने में मार्केट ने जस्ट उल्टा बिहेव किया है। यदि कोई मान लीजिए मैगजीन में आया क्या ये तो अब मार्केट में ये चारों तरफ तेजी है, यूएस तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा, तब उस समय के बाद का 11 महीना पेनफुल रहा है। और यदि कभी खबर स्टोरी आई क्या ये तो अब एंड ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है, इसमें ऐसा है, यूएस चाइना वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चारों तरफ नेगेटिव न्यूज है, सरप्राइजिंगली उसके 11 महीने का बाद का मार्केट अच्छा रहा है। तो न्यूज जिसको देख करके हम लोग कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करने की, उसका भी डायरेक्ट कम से कम कोरिलेशन नहीं है कि इसके बेसिस में आप पैसा कमा लोगे, इसका चांस ऑलमोस्ट उल्टा है। बल्कि तीसरी जो चीज होती है, क्या इस टाइम पर लोग और मेहनत क्या करते हैं, क्या लोग कंसल्ट करना शुरू करते हैं कई रकम से, क्या भाई अब तो मार्केट बहुत खराब होगा, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसमें लॉस है, कैसे होगा, तो हेल्थ का इशू है, वेल्थ में मेरा नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो उस समय लोगों को लगता है पहले जो मेरी इन्वेस्टमेंट उसको बेच दूं, क्या नया लेना तो है, तो उस समय वो फिर अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह से बात करते हैं, अलग अलग टाइम से जो सो कॉल्ड जितनी भी उनकी अपनी पहुंच होती है। अब उस समय क्या होता है, जब मार्केट 10,700 था तो 10,000 बॉटम लग रहा था, 10,000 जब टूटा तो 9,200 बॉटम लग रहा था, 90,000 टूटा तो 8,000 बॉटम लग रहा था, 7,500 गया तो 6,500 बॉटम लग रहा था। तो ये बॉटम टेक्निकल्स में आपको लगातार नीचे मिलते चल जाएंगे, आप जितने नीचे जाएंगे उतने आपको नेक्स्ट लेवल आपका मिलता चल जाएगा। उसको कोशिश करने में एक जो मेहनती लोग होते हैं वो उसको कोशिश करते रहते हैं, मैं पकड़ लूं उसको। उस चक्कर में एक ये डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है, कि पिछले 30 साल में यदि किसी ने बॉटम पकड़ने की कोशिश की है तो उसका अंजाम क्या हुआ है, ये वो डेटा है। क्या बॉटम पकड़ने के चक्कर में आप पिछले 30 साल में 29 साल में यदि आपने करीब 20,000 दिन में से आपने सिर्फ 20 अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर गई, जैसे अभी 7,500 से मार्केट बाउंस हुआ है, कोई भी अच्छा जो बड़ा मूव आया है, तो 20 बड़े मूव को भी आप यदि मिस कर गए उसमें से, ये आप 30 साल के 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में भी, तो आपका रिटर्न पिछले 30 साल में इंडेक्स का रिटर्न करीब 14% का रहा है, तो आपका रिटर्न घट करके करीब 8% हो जाता है। मतलब आपके 100 रुपये 29 साल में 4,700 रुपये होने की जगह पर सिर्फ 1,000 रुपये आपके हो पाते। तो इसकी कोशिश करना, ये एक जितने भी आप देखोगे वर्ल्ड के जितने भी बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स कर सकते हैं, ट्रेडर्स के लेकर ये वो जरूर उनको देखना होता है, किंतु इन्वेस्टर्स का लेकर ये एक्सरसाइज करना बहुत फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, और जो दुनिया के जितने बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं की है। और कुछ मेहनती जो होते हैं, हम लोग जो इस टाइम पर बेनिफिट लेने की कोशिश क्या करते हैं, हम लोग डेली FII का नंबर देखते हैं, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया। और एक हम लोग के दिमाग में एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कॉमन इन्वेस्टर्स के, क्या शेयर बाजार तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ की एक कठपुतली है, वो जब जैसा चाहते हैं वो, एक हर्षद मेहता एक नए रूप में नया जन्म हुआ उसका FII के रूप में, केतन पारिक और हर्षद मेहता और FII एक ही टाइप का है, वो मार्केट में प्ले करते हैं। देखिए FII का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल जरूर है, किंतु इंडियन मार्केट FII प्ले कर सकते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरी इंडिया का सिर्फ 11% शेयर है, उसकी वैल्यू 19% है, माने 81% ऑफ द वैल्यू एंड 90% ऑफ द शेयर्स आर स्टिल ओन्ड बाय इंडियंस। और ये FII कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, हर्षद मेहता केतन पारिक जैसा, ये FII 60 कंट्रीज में है,
और 10,000 से ज्यादा लोग हैं। और एफआईआई कोई एक नेचर का आदमी नहीं है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस है, यूनिवर्सिटीज फंड्स है, और ये ऐसे फंड्स है जो कि 15-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी के अंदर में एक सेगमेंट होता है हेज फंड्स का, उनका टाइम होराइजन कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो सकता है, किंतु बहुत छोटा पार्ट होता है पूरे इन्वेस्टमेंट का। और उसके अलावा दो कैटेगरी होती है, सॉवरेन फंड्स एंड ट्रेजरी फंड्स। अभी की जो बिकवाली आई है वो ये दो सेगमेंट है, ट्रेजरी एंड सॉवरेन फंड्स की, उनकी बिकवाली आई है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एफआईआई ऑर्गेनाइज में बेचे, इनके लेकर एक अलग प्रॉब्लम थी, उनके कारण उनको बेचना पड़ा। ये होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में, किंतु इसका पहले दिमाग से हम लोग ये हटा लें कि एफआईआई के कारण से ही मार्केट लॉन्ग टर्म में, वो जब बेचेंगे तो मार्केट गिर जाएगा, वो बाई करेंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा, वो इन्फ्लुएंस होगा, किंतु ये डायरेक्शन ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इनके बाइंग सेलिंग वगैरह में भी इतना रिस्ट्रिक्शंस है कि हम लोग जिस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जितने इजी तरीके से, फॉरेन इन्वेस्टर्स का उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। उनको मैनिपुलेट करने के लेकर बहुत बार रिस्क लेना पड़ेगा अपना करेंसीज वगैरह का। तो हमारे कम से कम ये जो डेली का डेटा एफआईआई के बेसिस में कोई डिसीजन लेने में, ये भी लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है। और भी जो मेहनती रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात को सोने के पहले डॉ जोन्स देखते हैं और वो डैक्स देखते हैं, सारे इंडेक्स को देखते हैं हम लोग, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बेसिस में हम लोग डिसीजंस लेंगे। ये एक अच्छी चीज है, जरूर चीज है, किंतु मार्केट का जो मूवमेंट है, ये इंडियन मार्केट अल्टीमेटली इंडिया की तरह चलेगा, और यूएस मार्केट यूएस की तरह चलेगा, चाइना का मार्केट चाइना की तरह चलेगा, लॉन्ग टर्म में यही होता है। अभी एक ये डेटा है, देखिए जापान में 1990 में जो मार्केट का टॉप बना था, मतलब आज से 30 साल पहले जो टॉप बना था करीब 45,000 का, 30 साल के बाद भी इंडेक्स उस लेवल को टच नहीं कर पाया है। फ्रांस में पिछले 20 साल से टच नहीं कर पाया है। स्पेन में करीब देखेंगे तो 14-15 साल से स्पेन में टच नहीं कर पाया है, इटली में टच नहीं कर पाया है। तो ये अलग अलग कंट्री में मार्केट ने अलग अलग टाइम पर ये इसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। तो हम लोग यदि ये सोचें क्या मार्केट को हम लोग एफआईआई का डेटा, ये कोई ग्लोबल मार्केट का इंडेक्स रात को मेहनत करके 1:30 बजे रात को सो के उठ करके हम लोग इंडेक्स देख करके वापस सोने की कोशिश करते हैं, तेजी के टाइम पर एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती है, मंदी यदि हुआ है डॉ जोन्स में तो टेंशन के कारण से नींद नहीं आती है, किंतु लॉन्ग टर्म में इसका खूब ये अपने आप में खूब रिलायबल नंबर्स नहीं है। तो इस टाइम पर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, जो पैसा कमाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी जैसे कोई फंड मैनेज कर रहे हैं तो हम लोग का अपना क्या नजरिया है, तो इनका उनका देखने का नजरिया क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। और हम लोग जब उनका आज 200 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स किसी एक इंडस्ट्री ने यदि पैदा किया था, दैट इज ब्रोकरेज इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा बिलियनर्स पूरे दुनिया में यदि हुए हैं तो वो इक्विटी मार्केट से हुए हैं, और वो कोई बाई चांस से नहीं है। वॉरेन बफेट यदि यदि वर्ल्ड के टॉप 5 में रहे तो वो लगातार रहे वहां पर। जो सोरोस ने पैसा कमाया है तो लगातार पैसा कमाया है। तो ऐसे क्या वो लोग करते होंगे। तो देखिए अभी मार्केट में उनको उनका देखने का नजरिया क्या है, उनको पता है स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है ये लॉन्ग टर्म में, जिसको कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि प्राइस इज ए स्लेव ऑफ अर्निंग्स। ये एक गुलाम की तरह, आप इसमें एक्सेल शीट में आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये इतना बड़ा ट्रूथ है अपने आप में कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का प्राइस हम लोग को दूर से बहुत इरेशनल लगता है, बहुत इरेटिक बिहेवियर लगता है उसका, किंतु लॉन्ग टर्म में इट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। ये देखिए ऊपर का जो ग्राफ है दैट इज ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स इस बीच में कम बेसी होती रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कभी थी वापस डाउन हुई है, किंतु उनको पता है ओवरऑल यदि उनका डायरेक्शन अर्निंग्स का वो लोग यदि प्रोजेक्शंस कर सकें कि जब अर्निंग्स ओवरऑल बढ़ेगी तो अर्निंग्स का ये एक ट्रेंड है, उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट का ट्रेंड देखो आप, लगभग वही है। तो अर्निंग्स डाउन हुई, कुछ भी स्टॉक मार्केट भी डाउन हुआ, किंतु अल्टीमेटली ये अर्निंग्स के लगभग उसी लीनियर लाइन पर ये मूवमेंट किया लॉन्ग टर्म के बेसिस में। शॉर्ट टर्म में लीनियर नहीं रहा, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आया काफी, अर्निंग्स के कारण से भी आया, किंतु उसके अलावा लिक्विडिटी एंड इमोशंस के कारण से। क्या ये इमोशंस एंड लिक्विडिटी के कारण से ये एक बहुत मूवमेंट, इरेशनल मूवमेंट हो जाता है,
किंतु लॉन्ग टर्म में मार्केट अगेन अर्निंग्स को ही चेज करता है। तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी एंड इमोशंस ये पूरे जर्नी को एक बार डिविएट कर सकता है वहां पर, किंतु लॉन्ग टर्म को इसको डिरेल नहीं कर सकता है। इस टाइम पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर क्या करते हैं, इसको जब उनको अर्निंग्स का ट्रेंड लगभग पता, वो कर पाने की पोजीशन में होते हैं, उनको पता यदि इंडिया का ग्रोथ होना है, ओवरऑल इंडिया, उनको अपने स्टॉक से मतलब नहीं है, उनको इंडेक्स से मतलब है, इंडिया से मतलब है। जो कंपनी खराब करेगी इंडेक्स तो उनको तुरंत डिवोर्स कर देगा। तो अच्छी कंपनीज इंडिया में यदि इंडेक्स में 50 कंपनी रह करके इंडेक्स कहाँ जा सकता है, इंडेक्स की कंपनी कैसे रह सकती है, यदि उनको एक फेयर आइडिया उनको, तो इस टाइम पर वो क्या करते हैं, इस टाइम को यूज करते हैं। देखिए वो प्राइस हमने देखा, प्राइस था और अर्निंग्स था। तो ये प्राइस और अर्निंग्स को हम लोग क्या क्या, फिर हम लोग यदि इसका रिलेशन निकालें, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, जिसको हम लोग पी रेशियो बोलते हैं, ये ऊपर का ग्राफ है। नीचे अर्निंग्स डिवाइडेड बाय प्राइस, जिसको अर्निंग्स रेशियो बोलते हैं हम लोग, अर्निंग्स यील्ड बोलते हैं हम लोग। तो ये दोनों में यदि हम लोग देखेंगे तो दूर से ये लगता है कि मार्केट कुछ भी बिहेव करता है, किंतु देखिए एकदम पैटर्न, इसका एक पैटर्न है। और जो लोग ये लोअर लेवल पे लेते हैं उनका जो रिटर्न होगा, नेक्स्ट जो रिटर्न होगा, ये पिछले 200 साल का डेटा है, लगभग 150 साल का, उनका रिटर्न एबनॉर्मली ज्यादा होगा। और यदि कोई हायर लेवल पे लेगा तो ये एक ज्यादा पीरियड के बाद इसका रिटर्न भी आएगा, किंतु कम आएगा। और यदि आप लोअर लेवल में बाई कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे, आप यहाँ पर बाई करो तो ज्यादा रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको बाई करने का ही रेंज है, यहाँ भी बाई करने का ही रेंज है, किंतु आप यदि यहाँ पर बाई करोगे तब आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो लोअर रेंज ऐसा है जहां पर वो लोग ग्रीडी हो जाते हैं, क्या कहीं से मेरे को छूट तो नहीं रहा है, मैं कैसे रहूं। इस टाइम पर बेचने की तो दूर की बात है, उनके मन में ग्रीड होता है। किंतु हम लोग जैसे जो नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे ये तो अब खत्म हो गया, ये तो कोविड आ गया, तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसी ऐसी घटना यदि आप देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। दुनिया में इससे भी बड़ी बड़ी घटना घटी है। आज यदि इसमें एक यदि इसके कारण से 5 लाख लोगों की डेथ होने की यदि उम्मीद है, 7-8 लाख होने की डेथ है, होने की उम्मीद है, तो ऐसी ऐसी घटना घटी है वर्ल्ड के अंदर में, जहां पर 10-10, 15-15 करोड़ रुपए, करोड़ लोगों की डेथ हुई है। तो ये डेफिनेटली बहुत पेनफुल है। किंतु इस टाइम पर ये मान लेना क्या ये शायद पूरे इंडिया या पूरे दुनिया का ग्रोथ रुक जाएगा, ये नहीं है। इसी टाइम को देखने की जरूरत है। यदि ऐसा कोई घटना घटे जहां से लगे नहीं सब कुछ खत्म होने वाला है, तब हम लोग हो सकता है ग्रीडी नहीं हो वहां पर, किंतु ये हम लोग को एनालिसिस करने की। किंतु यदि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है तो दिस आर गुड बाय टाइम्स। इन्वेस्टर्स इस टाइम पर ग्रीडी हो जाते हैं, हम लोग जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फेयरफुल होते हैं। देखिए ग्रीडी होने का नतीजा क्या होता है, ये डेटा है कि बहुत रफ आइडिया के हिसाब से डेटा है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशंस करना होता है। किंतु जिन्होंने 12 के नीचे का पी में बाइंग करते हैं, तो ओवरऑल देखा गया है कि 3 साल में 38% का CAGR रिटर्न पर एनम का रिटर्न आया है, 5 साल में 29% का रिटर्न आया है। और यदि 12 से 16 के पी रेशियो में यदि बाइंग हुई है तो 3 साल में 28% और 5 साल में 25% का रिटर्न आया है। और यदि हम लोग हायर पी रेशियो में बाई करते हैं तो रिटर्न हमारा 3 साल में नेगेटिव भी आ सकता है या नेग्लिजिबल भी होता है। तो हम लोग किस रेंज में बाई करते हैं, लोअर रेंज में लिया हुआ का रिटर्न ज्यादा है, हायर रेंज में नेगेटिव टू नेग्लिजिबल है। हाँ यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो 24 का पी में भी जो कि मार्केट धीरे धीरे बढ़ना है, तो लॉन्ग टर्म में कहीं कुछ आपको रिटर्न मिल जाएगा, किंतु देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। वैसे ही हम लोग प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें, हम लोग कभी भी 2.5 2.7 के नीचे का प्राइस टू बुक में लिया हुआ मार्केट इज ऑलवेज चीपर, मोर देन 4 में लिया हुआ वो वहां से लॉस होता है। तो जितने भी डेटा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसको हम लोग बियर रेशियो बोलते हैं। तो ये तमाम इतनी चीज है जिसको कि हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। फिर हम लोग देखें, हम लोग को इंडिया के कंटेक्स्ट में हर्षद मेहता की जो तेजी आई थी, उसके पहले के बॉटम से हर्षद मेहता की तेजी में करीब 1000% का ग्रोथ आया था। फिर हर्षद मेहता की मंदी के बाद केतन पारिक के टाइम में 300% का ग्रोथ आया, 6 से 7 साल के पीरियड में लगभग। लेमन जो फिर केतन पारिक के बाद जो मंदी आई 2003 में जो बॉटम बना, उसके 4 साल 5 साल के अंदर में मार्केट में 800% की तेजी आई। और अभी के यदि हम लोग देखेंगे तो लीमन ब्रदर्स के बाद जो फॉल आया था, वहां से भी हम लोग करीब ऑलमोस्ट 450-500% का ग्रोथ हम लोग देख चुके हैं। तो हर मंदी के बाद एक एबनॉर्मल रिटर्न की अपॉर्चुनिटी रहती है। हम लोग फियरफुल होते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस समय ग्रीडी हो जाते हैं, कॉशियस होते हैं कितना लेना है, क्या लेना है, किंतु दिस इज अ टाइम टू थिंक ऑफ बाइंग। और ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके हिसाब से क्या है, करंट जो अभी एक करेक्शन आया है,
ये करेक्शन पिछले 11 साल में ऐसा करेक्शन नहीं आया था। आप देखिए 1990 से 2000 के बीच में 6 बार ऐसा हुआ क्या मार्केट ने 15 का पी के नीचे या 15 के नीचे के पी में 6 बार गया बाजार 10 साल में। उसके बाद के 10 साल में 15 या 15 के नीचे का पी 5 बार गया। उसके 2010 से लेकर पिछले 10 साल में एक बार भी मार्केट अभी 15 के पी के नीचे नहीं आया है। तो वैसे जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके लेकर ये आफ्टर 10-11 ईयर्स ऑफ वेट एक ऐसा मौका है जहां पर मार्केट वापस उस लेवल्स को क्रॉस किया है या उसके आसपास लगभग चल रहा है। तो इसमें बात है क्या पी रेशियो क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन में होगा तो मैं कुछ कर लूंगा। तो अभी एग्जैक्ट पी रेशियो निकलना अभी कोई भी निकालेंगे ना वो काफी वेग होता है। इस टाइम पर ये पी रेशियो आपको पता लगेगा 2 साल के बाद अच्छा इतना पी रेशियो था, एग्जैक्ट अर्निंग्स क्या होगी। किंतु एक बात पक्की है कि यहाँ से 1 साल के बाद का को हम लोग यदि मैंने 2021 का पी रेशियो यदि निकालना चाहेंगे उसके बेसिस में हम लोग को जरूर मिलेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं लेस देन 15 में जरूर, हम लोग 12 से 15 के रेंज में हम लोग कहीं ना कहीं जरूर ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा से पी रेशियो इस टाइम पर खूब रिलायबल नहीं हो पाता है, तो उसके लेकर बाकी इंडिकेटर्स, इसमें से एक जो इंडिकेटर जो इसको बफेट इंडिकेटर भी बोलते हैं, इंडिकेटर मार्केट कैप टू जीडीपी, ये रेशियो अभी जब मार्केट 7500 के आसपास गया था निफ्टी का तो 48 तक चला गया था। वहां से अभी वापस ठीक होने के बावजूद भी अभी 53-54 के आसपास में है। हमारा लॉन्ग टर्म का एवरेज अभी तक का, जब पहले इंडिया काफी का ग्रोथ रेट काफी कम हुआ करता था उसका भी एवरेज में हम लोग 76 का हम लोग का एवरेज रहा है। तो पिछले 25 साल में हम लोग का एवरेज 76 का था, अभी हम लोग 53-54 में ट्रेड कर रहे हैं। और 2008 में ये 158 चला गया था। माने हम लोग यदि पिछले 10 साल में हम लोग देखें तो ये इसका मीन करीब 2000 हाई लो का हम लोग करें एवरेज निकाले हम लोग तो 100 का मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो था, अभी हम लोग 54 में है। तो मीन के हिसाब से हम लोग 45% डिस्काउंट में कर रहे हैं और पूरे लॉन्ग टर्म का मीडियन के बेसिस में हम लोग 30 से 35% डिस्काउंट में हम लोग। बॉटम हमारा मिस हो गया, उस समय 38% डिस्काउंट था, अभी 32% डिस्काउंट है। किंतु हम लोग वी आर स्टिल एट अ डिस्काउंट, मार्केट में अभी भी सेल चल रही है। और ये दूसरा एक डेटा है, ये डेटा शायद दुनिया में मार्केट कैप टू जीडीपी के बाद सबसे ज्यादा फॉलोड यदि कोई डेटा है तो ये डेटा है जिसको कि हम लोग अर्निंग्स यील्ड और बॉन्ड यील्ड का, जब जब कंपनी की अर्निंग्स की कमाई बॉन्ड के कमाई से ज्यादा होने लग जाए तो स्टॉक मार्केट में उसके बाद तेजी आती है। जब जब हुआ है तो मार्केट में बड़ी तेजी आई है। माने नेक्स्ट 3 साल में 2002 के बाद तो नेक्स्ट 3 साल में 55% पर एनम की इनकम थी, और फिर 2000 के टाइम पर यदि कोई लिया होता तो उसको करीब 22-24% की रिटर्न थी। ये अभी वापस वो टाइम आया है कि जहां पर हम लोग की अर्निंग यील्ड बॉन्ड यील्ड से ज्यादा हो गई है। तो उसके अलावा भी प्राइस टू बुक, जैसे मैंने कहा 2.7, हर से ये 2008 में प्राइस टू बुक करीब 7 का चला गया था, और वहां से डाउन होने के बाद भी वो करीब 3 के आसपास का प्राइस टू बुक था, 2.9 का। अभी हम लोग 1.9 के प्राइस टू बुक में है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग 30-35% डिस्काउंट में भी चल रहे हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस में कम से कम एक ये ब्रॉड आइडिया जरूर हम लोग को मिलेगा। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो देखते हैं उनके नजरिए से वो अभी डाउट वाले फेज में नहीं है, उनको एक ही है क्या मैंने अभी जो बाइंग किया था और मुझे बाइंग करना है, अभी करना है, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था और कहाँ लेना है। तो वो अभी बाइंग का डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, क्या लगाएं, कितना लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, उस पर है। उनके दिमाग में अभी सेल करने का अभी नहीं चल रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता 2 महीना 1 महीना, ये किसी को नहीं पता होता है, किंतु उनके लेकर ये कोई मायने नहीं होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होती है कि भाई मार्केट यहाँ से यदि ठीक भी हो गया तो ठीक क्यों होगा, मार्केट ठीक होगा इज ए स्लेब ऑफ अर्निंग्स। तो इंडिया की अर्निंग्स बढ़ने वाली है क्या? मेरी जो कंपनी वो नहीं, मुझे तो कंपनी से कोई अटैचमेंट है, जो अच्छी कंपनी होगी उसमें लगा सकता हूँ। इंडिया की अर्निंग्स बढ़ने वाली है क्या, तब ये मार्केट बाउंस करेगा। और यदि इंडिया की अर्निंग्स ही नहीं बढ़ने वाली है, जापान की तरह पोजीशन जल्दी हो जाएगी, तब मुझे यहाँ पे ग्रिडी नहीं होना चाहिए। मार्केट सिंपली डाउन हुआ बल्कि मैं ग्रिडी हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो अब इंडिया को उनका देखने का नजरिया क्या होगा। अब देखो कि मार्केट जब भी रिसेशन में जाता है तो ये 4 तरीके से रिबाउंड करता है। एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं वी शेप रिकवरी, मार्केट डाउन हुआ, मार्केट नहीं, इकोनॉमी डाउन हुई, अर्निंग्स डाउन हुई, पूरी कंट्री की अर्निंग्स डाउन हुई और 1 साल के अंदर अंदर में वापस बाउंस हो गई अर्निंग्स की।
माने उसका जो जीडीपी आप लार्जली आप बता सकते हो कि जीडीपी का ग्रोथ प्रीवियस ग्रोथ रेट के आसपास में आ गया। मतलब हम लोग यदि एक साल के अंदर में हम लोग एक साल लगभग एक साल जो अगला एक साल होगा 2021 के बाद का जो 21-22 होगा, वो यदि हम लोग वापस जो 5% का ग्रोथ रेट था वहां यदि हम लोग रिकवर हम लोग पहुंच गए तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग वी शेप रिकवरी। और एक दूसरा होता है इसको यू शेप रिकवरी बोलते हैं। यहाँ से मार्केट डाउन हुआ और उसकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में रही काफी टाइम तक, उसके बाद रिकवर की। वहां पर 2 से 3 साल तक इकोनॉमी इसी रेंज में चलती रही। ये यू शेप रिकवरी है। और तीसरा हो सकता है वी शेप डब्ल्यू शेप रिकवरी। मार्केट इकोनॉमी खराब हुई, फिर एक बार टेम्पोररी रिलीफ में ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर ओवरऑल 3-4 साल में दोबारा ऊपर गई। और चौथा सीन होता है, इसको डब्ल्यू शेप रिकवरी बोलते हैं। और एक हो गया एल शेप रिकवरी, जो कि जापान टाइप की कंट्रीज में हो रखा है, जहां से मार्केट जो इकोनॉमी डाउन हुई उसको रिवाइवल होने में टाइम लग रहा है। तो इतने टाइप की रिकवरी का चांस है। तो हम लोग अभी इंडिया में देखना है कि यहाँ से इस घटना के बाद इंडिया क्या हो सकता है, कि यहाँ से जो मार्केट ओवरऑल अर्निंग्स कितनी बढ़ सकती है। तो एक जो अभी हम लोग का जो सोचना है उसके हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। एक है नाइक शेप में, ये लेफ्ट नाइक का लोगो है उसके शेप में, और एक है थिक टिक शेप में, थिक टिक शेप विथ अ थिक टेल। ये क्या है कि मार्केट डाउन हुआ, थोड़ा डैमेज ज्यादा हुआ, किंतु वापस रिकवर होते होते प्रीवियस हाई से ऊपर चला गया, लगभग उसके आसपास में आ गया। ये नाइक शेप है, जो कि अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत सी जो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, जहां पर जो डॉलर यूएस टाइप की कंट्री, वो ट्राई करेगी यहाँ तक पहुंचने की, वापस रिकवर करने की। इंडिया का जो शायद बहुत लोग को पता होगा, मैंने लाइफ में जितना भी किया है वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे काफी काम किया, जितनी भी कोशिश की पढ़ने की, तो मेरा बहुत हाई कन्विक्शन है कि हम लोग टिक शेप में हम लोग रिकवर करेंगे। मार्केट डाउन होगा, डाउन हुआ है, ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हुई है। यहाँ से इकोनॉमी रिकवरी में थोड़ा मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी हम लोग फियर से, अभी की जो मंदी है ये मंदी घटना से ज्यादा फियर के कारण से है। लोगों को भय है, डेथ इशू नहीं है यहाँ पर कितने लोग मर जाएंगे, क्योंकि जितने लोग इंडिया में 20,000 लोग तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट से मरते थे हर महीने। तो पिछले 1 महीना में जितने भी लोग, आज यदि 1200 लोग मर गए, तो हम लोग कम से कम 30,000 लोगों की सेविंग हुई हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट से। तो नंबर ऑफ डेथ इज नॉट एन इशू, यहाँ पर इशू है फियर का। लोग डर से निकलना जो है, और जो कि डर बहुत जेन्युइन है, तो ये डर के कारण से क्या है, ओवरऑल रिसेशन है, एक्टिविटी है, जो यहाँ पर मार्केट अर्निंग्स में, ओवरऑल इकोनॉमी की एक्टिविटी में अभी पेन है। और ये पेन थोड़ा सा रहने वाला है। हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, वापस जब जाएंगे तो फिर जब लॉकडाउन अभी जैसे पार्सली हुआ, बाहर जाके देखेंगे तो और पेन, वापस बिजनेस करना चाहेंगे तो सप्लायर नहीं है, लेबर नहीं है, बहुत सी इशूज है, बैंक है लोन नहीं देना चाह रही है। तो ये हो सकता है कुछ टाइम तक ये रहेगा। ये फियर खत्म होगा जब भी लोगों को डर हो जाएगा, लाइफ का डर से खत्म होगा। वो वैक्सीन का कहीं ना कहीं पता लगा, वैक्सीन आ गई है, वो शायद गांव तक नहीं पहुंचे उसके पहले भी, किंतु ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो ये हम लोग को उम्मीद है कि इंडिया यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रगल करके रिकवर करने के बाद, किंतु ह्यूज यहाँ से ग्रोथ होने की उम्मीद है, जिसको कि हम लोग इंडिया डीकपल थ्योरी बोलते हैं। या आने वाले टाइम में हम लोग ये वर्ड बहुत कॉमनली सुनेंगे, क्या इंडिया डीकपल्ड हो गया, बाकी वर्ल्ड की तुलना में इंडिया ज्यादा ग्रो किया है। ये क्या जेंसन्स में है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इक्विटी मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया पर विश्वास होना चाहिए कि इंडिया कितना आगे बढ़ेगा। देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। क्या इंडिया का ये कोरोना है या जितनी भी इस टाइप की घटना घटे, तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी कहीं भी डिस्टेबलाइज नहीं हुआ है। वो एकदम एज इट इज वहीं का वहीं, वो खूटा जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी का है, दैट इज वेरी मच इंटैक्ट। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो वो लार्जली 3 पिलर्स में हम लोग बोल सकते हैं, एंड 4th पिलर इज कंजम्पशन। ये 4 पिलर्स क्या क्या है? एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका आकार, प्रकार एंड व्यवहार, दैट इज डेमोग्राफी, दैट इज एग्जैक्टली वहीं का वहीं है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक डिविडेंड। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अनलाइक अभी जो ग्रोथ जो
पूरा लास्ट हम लोग यदि देखेंगे 20 ईयर्स का ग्रोथ जो ड्राइवर्स रहा है चाइना, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, किंतु स्टॉक मार्केट का पैसा का पहला वीकनेस इज ग्रोथ, तो वो डेमोक्रेसी को भूल जाता है एक बार, किंतु वो कंफर्टेबल डेमोक्रेसी में होता है। तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, प्लस यहाँ का रूल ऑफ लॉ इंग्लिश से बना हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में जो पैसा है उसका बहुत सा लार्जर सेगमेंट वो इंग्लिश ड्रिवन पैसा है, उनका रूल ऑफ लॉ इंग्लिश ड्राफ्टेड है, तो इंडिया इंग्लिश बेस्ड रूल ऑफ लॉ है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में जो हम लोग बोलते थे दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस, इज द कंजम्पशन ट्रिगर। देखिए इंडिया का करीब 70% लोग 36 साल से नीचे के एज के हैं, और मोर देन 50% लोग 25 साल से नीचे के हैं, और सबकी एवरेज इनकम आज $1500 को पार कर गई है पिछले 3 साल पहले, अभी वो करीब $2000 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जब जब जिस भी कंट्री में आया है वहां पर ग्रोथ, जैसे अभी कम्युनिटी स्प्रेड की तरह वायरस बढ़ता है ना, उस कंट्री में तेजी उस हिसाब से बढ़ती है, कंजम्पशन उस हिसाब से बढ़ता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं आपको, क्या इसमें कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्या इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है ये अगला 2050 तक हम लोग जितनी भी लार्ज इकोनॉमी है उसकी तुलना में हम लोग यंगेस्ट पॉपुलेशन रहने वाले हैं, और 70% जो हमारे जो 2/3 लोग जो प्रोडक्टिव साइकिल में है, और जो 1/3 लोग जो डिपेंडेंट भी हैं उसका भी 75% बच्चे हैं। तो ये जो होते हैं आज 25 साल का जो बच्चा होगा उसकी जो नीड होगी, उनके पास जब इनकम आनी शुरू होती है $2000 के ऊपर में, तो उनकी नीड बहुत अलग हो जाती है। उनको एक तो एवरेज 36 साल के लोगों का नीड है, जब ज्यादा कमाई आती है तो ज्यादा अच्छा से रहना चाहते हैं, उनको घर की इच्छा होती है, उनको ज्यादा अच्छा पहनने की इच्छा होती है, ज्यादा उनको खाने की इच्छा होती है, ज्यादा अच्छा उनको विजिट ट्रेवल करने की इच्छा होती है, तो उनकी नीड काफी तेजी से बढ़ती है। 25 साल के लोगों के लेकर मैरिज की अलग से नीड्स होती है, उनको घर अलग से, उनके लिए इंडिपेंडेंट घर की जरूरत होने की नीड्स होती है। और तो ये एक ऐसा टाइम होता है, इंडिया जैसे एक टाइम पर यूएस था, उसके 20 साल के बाद जापान की स्थिति आई थी, उसके 20 साल के बाद साउथ कोरिया की स्थिति आई थी, उसके 20 साल के बाद चाइना की स्थिति आई, आज हम लोग 20 साल के बाद इंडिया उस फेज में है। अब देखो चाइना का हम लोग 1980 में दोनों की पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर थी, चाइना की और इंडिया की। आज 40 साल के बाद चाइना का पर कैपिटा इनकम 25 टाइम करीब बढ़ गया और हम लोग का सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा है। तो ये टाइम अभी इंडिया का आया है। तो ये एक ओवरऑल ये डेमोक्रेसी का जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज वेरी मच देयर। और ये जो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है तो इसका एक दूसरा भी एक एंगल होता है, क्या लोग अर्बनाइजेशन, गांव से शहर की ओर भागना शुरू करते हैं। शहर की ओर जब जाते हैं तो वहां पर न्यूक्लियर फैमिली बननी शुरू हो जाती है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बननी शुरू होती है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर में बच्चे पर लोग एजुकेशन में ज्यादा खर्चा करते हैं, तो लोगों का अवेयरनेस लेवल काफी बढ़ता है बच्चे का। और दूसरी एक चीज क्या होती है साथ में, कि डिसीजन मेकिंग, जहां जॉइंट फैमिली में बुजुर्ग डिसीजन लिया करते थे, न्यूक्लियर फैमिली में पहले वाइफ डिसीजन लेती है, बाद में धीरे धीरे घर में डिसीजन बच्चे लेना शुरू करते हैं। तो जो बच्चे का डिसीजन मेकिंग होता है, बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत अच्छे कंज्यूमर होते हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत अच्छे रिस्क टेकर होते हैं, किंतु उनको पेशेंस कम होता है। तो उनकी बेहतर अवेयरनेस के कारण, बेहतर रिस्क एपिटाइट के कारण और लेसर पेशेंस के कारण से इक्विटी एज एन एसेट क्लास भी काफी पॉपुलर होना शुरू होता है। तो ये स्टोरी इंडिया की किसी कोरोना के कारण से इफेक्टेड नहीं हुई। अभी जो आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दैट इज क्या इंडिया, जहां से ये इस कोरोना के पहले का जो ग्रोथ रेट होने की जो उम्मीद थी और इस घटना के बाद एक ये बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्या इंडिया बहुत स्ट्रॉन्गर बन के आने की उम्मीद है इसकी। और यहाँ से ये हम लोग को बुन इन डिस्गाइज, हमारे हेल्थ के लेकर, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खराब घटी है ये, किंतु इंडिया के इकोनॉमी के लेकर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं इसमें से खाली 1-2 पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि हम लोग को पहले स्टॉक मार्केट में कन्विक्शन के लेकर, आपको इंडिया में कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग कुछ ना कुछ जॉब में भी होंगे या बिजनेस भी कर रहे होंगे, उसके हिसाब से भी ये जानना जरूरी है। देखिए इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक बून एंड डिस्गाइज क्या हुआ, क्या चाइना को जो ग्रोथ हुआ था उसका मेन कारण क्या था, क्या वो पूरी दुनिया का एक ग्लोबल फैक्ट्री बन गई थी। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना पर डिपेंडेंसी 70 से 95% तक थी।
उसके पहले यदि साउथ कोरिया में जो तेजी आई थी तो उसका मेन कारण वही था। और यदि हम लोग उसके पहले जापान में देखेंगे तो सबको सोनी का टाइम था, जहाँ पर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकर जापानी हब हुआ करता था। तो जहाँ पर भी ये तेजी आई है उसके पीछे ट्रिगर रहा है कि वहाँ पर एक सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग का एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखी गई। इस घटना के बाद से एक जो बहुत क्लियर चीज, वो ट्रेंड एकदम विजिबल है, बहुत लॉजिकली विजिबल है। इलेक्शन ईयर में है, जब यूएस में भी इलेक्शन ईयर है, वहां पर ये और एग्रीवेट होने वाला है। क्या प्रेसिडेंट कभी नहीं चाहेगा कि उसका ब्लेम उस पर आए, वो पूरा का पूरा ब्लेम चाइना पर पास ऑन करने की कोशिश करेगा, और ये चीज ऑलरेडी विजिबल भी हो गई है। तो ऐसे टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना होने की उम्मीद बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। और इसमें जो पुरानी इंडस्ट्रीज को, पुरानी फैक्ट्री को तुरंत शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है, किंतु नई इंडस्ट्री, जो नया ग्रोथ है, वो कम से कम अवे फ्रॉम चाइना आएगा। पुरानी इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ट्रेंड होगा वहां से डाइवर्ट होने की। और ये रिस्क के कारण से भी होगा, एक्स्ट्रा रिस्क, क्योंकि सिंगल पॉइंट में डिपेंडेंसी भी रखना ठीक नहीं है। सबको पता है यदि वापस उसको सप्लाई चेन में कितना बड़ा दिक्कत आई, प्लस एक कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ है कि चाइना के कारण से इतनी प्रॉब्लम आई। और जो तीसरा एक नेचुरल क्या चीज होती है कि वहां पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी लोग इन्वेस्टमेंट किए थे, क्योंकि वहां पर बाकी फैक्टर्स बहुत फेवरेबल थे। तो अवे फ्रॉम, यदि अगेन किसी को कंफर्ट और डेमोक्रेसी में आने का और इंग्लिश बेस्ड रूल ऑफ लॉ में, तो वो नेचुरल फ्लो वहां पर ट्रेंड देखना, एक स्लोप वहां पर देखा जा सकता है। अब किंतु इंपॉर्टेंट क्या है, क्या लोग बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे ना, तो बिजनेस यदि यहाँ पर आएगा तो इंडिया वहां पर कितना अच्छे से पोजिशन है। एक अच्छी चीज क्या हुई है पिछले 4 साल में, ये कहीं ना कहीं एक जब किसी को बोलते हैं ना स्ट्रांग होना होता है, तो वहां पर भगवान भी उसका सपोर्ट करना शुरू करता है। तो इस टाइम पर इंडिया बहुत फेवरेबली प्लेस्ड है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टाइम पर 2000, जब हम लोग 2000 के टाइम पर चाइना में जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ था, वहां का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीपेस्ट था। इसके कारण से मेन वहां पर हब बनना शुरू हुआ था। आज के दिन में इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना के बराबर नहीं, चाइना से कम है आज। ये राइट में डेटा है, मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, जस्ट रेफरेंस के लेकर, क्या कैसे टीवी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 15% चीपर है, मोबाइल का 12% चीपर है। मतलब ओवरऑल हम लोग करीब 14 से 15-16% हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर कॉस्ट हमारा कम हो गया है। और बेहतर स्किल्स के लोग हैं यहाँ पर, इंग्लिश स्पीकिंग लोग यहाँ पर ज्यादा है। और कैपिटल की दुनिया में आज कमी नहीं है। जब जहाँ पर जापान में नेगेटिव आज यदि इंटरेस्ट रेट है, यूएस में आज यदि इतना कम इंटरेस्ट रेट है, तो जहाँ पर ग्रोथ है, कैपिटल की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी कंट्री के लेकर। एक होता है क्या, लेबर, और उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंडिया का पिछला 4 साल 5 साल में खास करके ये प्रोजेक्ट चल रहा था करीब पिछले 12-13 साल से, किंतु पिछले 4-5 साल में इस गवर्नमेंट ने एक जो थोड़ा अच्छा काम जरूर किया है, वो है क्या, वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। इस पे काफी काम हुआ है। और ये अनजाने में हमने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है कि यदि कोई इंडस्ट्री को इंडिया में आना हो तो उसके लेकर लैंड, ये 1500 किलोमीटर की एक 6 लेन का रोड का दिल्ली से ये मुंबई को कनेक्ट करता है, जहां पर करीब 7 स्टेट्स हैं इसके अंदर में, 6 प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री रीजन्स बने हैं। एक एक रीजन 200 स्क्वायर किलोमीटर का है। 24 स्मार्ट सिटीज इस लेन पे बनने वाली है। 6 एयरपोर्ट्स यहाँ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और 2 मेगा पावर प्लांट्स हैं। 24x7 वाटर सप्लाई है यहाँ पर, और करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एक पॉइंट से आज वेस्ट का यदि पोर्ट किसी को एक्सपोर्ट करना हो तो पहले 14 दिन जो टाइम लगता था वो कोई गुड्स को ट्रांसफर करने में वहां पर, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज बाहर की आती है उनके लेकर ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि प्रोडक्शन के बाद मेरा नियरेस्ट वेस्ट जो कोस्ट है वहां पर जाने में कितना टाइम लगेगा। पहले 14 दिन की जगह पर अब सिर्फ 18 घंटे में वो गुड्स वहां पहुंच सकती है। तो टैक्स का फिर इशू था, टैक्स ऑलरेडी हम लोग चीपर देन चाइना। आज हम लोग नया प्रोजेक्ट में तो 15%, नया कंपनी में जो नया इंडस्ट्री 15% है, पुराने में भी 22% है, तो हम लोग को बल्कि एज है उसमें। तो ये तमाम बात है जहां पर कुछ पॉलिसीज यदि प्रॉपर रही, इंटर स्टेट रिलेशंस थोड़ा सा लोग उसको मैनेज कर पाई गवर्नमेंट,
तो ये अपॉर्चुनिटी वाइज इंडिया के लेकर इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years। और एक दूसरा एडवांटेज क्या हुआ इस फॉल के साथ में, जो साथ में दहेज में मिला हम लोग को, क्या ऑयल प्राइस डाउन हुआ। ऑयल प्राइस डाउन होने से हम लोग को पता है करीब 82% हम लोग अपने नीड का ऑयल इंपोर्ट करते हैं इंडिया, और उसमें करीब 40% का डिक्लाइन, 40-50% का डिक्लाइन है। 1% डिक्लाइन का मतलब हम लोग करीब $1.25 बिलियन पैसा बनाते हैं, हम लोग सेविंग्स होती है। तो आज 40-45% डाउन होने का मतलब हम लोग करीब $60 बिलियन पैसा इंडिया की ऑयल में सेविंग्स होगी। और दूसरा जो है, ऑयल से ज्यादा इंडिया के लिए रिस्क बनने वाला था कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट। हम लोग करीब $42 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बाहर से। मोबाइल का इंपोर्ट उम्मीद की जा रही थी कि अगले 3 साल में हम लोग जितना ऑयल करीब $115 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो लगभग $100 बिलियन का खाली मोबाइल इंपोर्ट करने का रिस्क हो गया था। तो यदि ये मैन्युफैक्चरिंग हब यदि इंडिया बनता है तो आज हम लोग इंपोर्ट करने की बजाय इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इंडिया के लेकर एक एडेड एडवांटेज होगा सप्लाई चेन का बेनिफिट के साथ में, क्या हम लोग ये ऑयल और जो नेक्स्ट ऑयल है हमारा, दैट इज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट, ये इंडिया के लेकर कहीं बोन इन डिस्गाइज बनने की बहुत बड़ी उम्मीद है। अभी एक जो लोगों के मन में भय है, एक आम इन्वेस्टर्स का जो भय है मन में, उसको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कैसे देख रहे हैं। सबको ये कहे कि भाई बैंक में काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, बैंक में बहुत बड़ा एनपीए हो जाएगा। डेफिनेटली होगा, बैंक में बहुत बड़ा रिस्क जरूर है, किंतु यदि हम लोग देखें 2008 में तो करीब 65 लाख करोड़ का बैंक का लोन था। उस 65 लाख करोड़ के बैंक के लोन में करीब 18 लाख करोड़ का एनपीए हो गया था। 18 लाख करोड़ का एनपीए था 2014 में। 18 लाख करोड़ का एनपीए था, जो कि उसके बाद के 6 साल में लगभग खत्म हो गया। तो लगभग पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया था। तो 18 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया था। आज के समय में करीब 14 लाख करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन है, और डिप्रिसिएटिंग स्टॉक के अगेंस्ट, मोबाइल के अगेंस्ट में लोन है, उसको भी इंक्लूड करके क्या 14 लाख करोड़ का मैक्सिमम लोन है। 14 लाख करोड़ का एक वर्स्ट एस्टिमेट आता है कि 20% पैसा डूब जाएगा, 25% पैसा डूब जाएगा। तो यदि 20-25% का भी पैसा यदि वहां पर डूबता है तो भी हम लोग आज 14 लाख करोड़ का मतलब हम लोग 3 लाख करोड़ का बेड हो जाएगा। 3 लाख करोड़ का एनपीए, ये और वो भी 120 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़। हम लोगों ने 65 लाख करोड़ में 18 लाख का एनपीए इंडियन की बैंकिंग सिस्टम झेल चुकी है। तो ये डेफिनेटली पेनफुल होगा, किंतु ये इतना नहीं है कि इंडियन के फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दे। अभी के टाइम पर डेफिनेटली चैलेंज है। तो कैजुअल लेबर, जो कि करीब 10 करोड़ कैजुअल लेबर, आज वो उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनका पैसा मिलना उनके लेकर उनको सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा क्या होगा जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, ये वापस जब नॉर्मल में आने लग जाएगा, तो ऐसे लोग जो गांव जा रहे हैं वापस कितनी तेजी से इंडस्ट्रीज में आएंगे, क्योंकि उस समय अगेन उनको फिर, इस समय क्रॉप काफी अच्छा हुआ है, जो रवि का क्रॉप है वो काफी अच्छा हुआ है, वापस फिर विंटर क्रॉप आना शुरू हो जाएगा। तो वो गांव में ऑलरेडी उनको पैसा मिला है, क्रॉप में काफी अच्छा पैसा मिला है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ने। तो उनकी इच्छा होगी चलो ठीक है यहाँ पर सेफर है, घर में रह जाते हैं तो अगली खेती करके जाएंगे यहाँ से। तो ऐसे लेबर का वापस जाना इशू है। मीडियम एंड स्मॉल साइज मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं, इनके लेकर बहुत करीब 6.5 करोड़ मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जो कि इंडिया के जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। इनको एक पेन है, जरूर जेन्युइन पेन है। इनको कैसे गवर्नमेंट एड्रेस करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं काफी ब्रॉड नंबर्स दे रहा हूँ, आपको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो ये तमाम बात के बेसिस में एक जो चीज आती है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, जीडीपी जरूर डाउन हो सकती है, एब्सोल्यूट सेंस में डाउन हो सकती है, किंतु रिलेटिव सेंस में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से यदि हम लोग 3-3.5% एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे थे, तो अभी भी हम लोग पोस्ट कोरोना भी इंडिया का ग्रोथ, या ड्यूरिंग कोरोना भी इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ, वो कम से कम एब्सोल्यूट रिलेटिव सेंस में दुनिया से 3-3.5% हायर ही रहेगा। अब दूसरी चीज है, हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल के कारण से, वो एक फंडामेंटल को ध्यान रखते हैं, वो लिक्विडिटी को ध्यान रखते हैं, क्या मार्केट में कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी की जो मंदी आई थी उसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था, क्या लोगों ने जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको जब डर हुआ चाइना से, क्या चाइना में जो ये कोरोना फैल रहा है तो इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने क्या किया,
अपने पास जो कैश इक्विवेलेंट का पैसा, उनका जो वर्किंग कैपिटल का पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने बेच करके कैश में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो कैश इक्विवेलेंट में उनका इक्विटी का ईटीएफ और बॉन्ड का ईटीएफ भी होता है। तो वो जब सेलिंग आई तो उसका इमर्जिंग मार्केट में 11% इमर्जिंग मार्केट का वेटेज था, करीब 7.5% का इंडिया का वेटेज था, और इंडिया के अंदर में 42% फाइनेंशियल स्टॉक्स का था। तो वो जो मंदी आई, वो जो बिकवाली आई, वो 60,000 करोड़ की करीब बिकवाली आई। तो वो पूरी की पूरी बिकवाली इंडिया एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय बायर एक साथ में इंडिया के पास नहीं थे। 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ का एसआईपी आ रहा है, कुछ आया, कुछ एलआईसी नहीं खरीदा, किंतु 60,000 करोड़ को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं था। इंडिया में मंदी वैल्यूएशन के कारण से नहीं आई। क्या लोग वैल्यूएशन हाई बबल में था, केतन पारिक और हर्षद मेहता के टाइम पर बबल के कारण से गिरा? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ लिक्विडिटी के कारण से मंदी आई। और वापस जो मार्केट इतनी तेजी से रिकवर हुआ है, ये भी इसी को इंडिकेट करता है। फंडामेंटल्स और न्यूज तो अभी भी उतनी खराब और खराब हो गई। रादर जब ये मंदी आई थी हम लोग का 23 मार्च को, तो उस समय यूएस में 40,000 लोग खाली अफेक्टेड थे। आज 30 टाइम ज्यादा लोग अफेक्टेड है, किंतु मार्केट 20-25% ऊपर है। इंडिया में 13 मार्च को सिर्फ 100 लोग अफेक्टेड थे। आज नंबर सबको पता है कहां पर है। किंतु ये वापस तेजी क्यों आई? क्योंकि लिक्विडिटी वापस इन्फ्यूज होनी शुरू हो गई, क्योंकि मंदी का कारण लिक्विडिटी था। तो ऐसे लोग, हम लोग न्यूज देख रहे हैं, हम लोग एफआई और बाकी चीज देख रहे हैं हम लोग, और वैसे लोग देख रहे हैं कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई या वापस आ सकती है। तब वहां पर चूंकि इतने लोग, वहां पर गवर्नमेंट बाइंग कर रही है, लोगों का बॉन्ड बाइंग कर रही है कि जो कंपनीज है उसकी वर्किंग कैपिटल की नीड्स बॉन्ड से पूरी हो जा रही है, उनको इक्विटी बेचने की जरूरत नहीं हो गई है। तो अभी नजर भी है, तो क्या वो लोग वापस बेच सकते हैं? बॉन्ड की बाइंग है क्या नहीं, वो उस चीज को देख रहे हैं। इंडिया के अंदर में हम लोग 60,000 करोड़ को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सके, किंतु पूरे एक साल का यदि पीरियड लेंगे तो इंडिया में करीब 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का डोमेस्टिक फंड्स आता है इक्विटी में। तो ये जितना भी पैसा था, हम लोग धीरे धीरे हम लोग एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में है। हम लोग यदि हम लोग 1 मार्च के दिन में यदि देखेंगे, 1 मार्च 2021 को यदि हम लोग देखेंगे, तो 1 मार्च 2021 के दिन में हम लोग यदि यहाँ से 60,000 करोड़ की सेलिंग आई है, हम लोग मान के चले और 60,000 करोड़ की सेलिंग आ गई, जबकि ऐसा होगा नहीं। अभी करीब ये अगले महीने में ही एमएससीआई का खाली जो इंडेक्स में इंडिया का वेटेज बढ़ा है, उसके कारण से करीब 12-14,000 करोड़ आने की उम्मीद है। तो यदि हो गया कि और 60,000 करोड़ भी बिक गया, तो भी इंडिया का डोमेस्टिक फ्लो इतना है कि पूरा का पूरा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर पाया, किंतु एक साल के अंदर में वो पूरा का पूरा यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यदि एफआईआई का वापस इन्वेस्टमेंट आ गया, तब तो ये अलग से ट्रिगर बन जाएगा राधे, जिसकी कि हम लोग को उम्मीद है। तो ये चीज हम लोग आज देखें, क्या एक इन्वेस्टर, कॉमन इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेता है, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, जो मेच्योर इन्वेस्टर्स हैं, उनका देखने का नजरिया क्या है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए अब हम लोग आज का जो फाइनल जो डिस्कशन पॉइंट था, जिस पर हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे थे कि हम लोग को डिसीजन क्या लेना चाहिए, तो हम लोग आज अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस पे आते हैं। क्या इस टाइम पर अब इतनी तमाम बात को ध्यान रख करके, ताकि हम लोग साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, इट इज 75% अबाउट साइकोलॉजी एंड 25% इज स्किल। अब हम लोग स्किल की बात करते हैं, आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के पास के लिए आपके पास 2 डिसीजंस लेने का है कि आपको एग्जिस्टिंग पैसा क्या करना चाहिए। सेकेंड है कि नया पैसा यदि लगाने की इच्छा है या आपके पास सरप्लस फंड है, तो क्या करना चाहिए। 2 ही डिसीजन का 2 पार्ट है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करें, नया इन्वेस्टमेंट को क्या यदि करना हो, नहीं करना हो तो क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग देखें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्टेक है वहां पर। तो इसमें 2 ही चीज हो सकती है, क्या मैं इसको रिसेल कर दूं पूरा। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करें उससे एक आपको आइडिया मिल सकता है कि भाई मार्केट ऐसा अप डाउन होता रहेगा, 9800, 99,000 हो सकता है 8500 जाए, फिर क्या जाए 10,000। इसको कोई भी दुनिया का आदमी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है 500-500 पॉइंट का। इन्वेस्टर कभी कोशिश भी नहीं करते। हमारा क्वेश्चन लेवल 40% डिस्काउंट में थे, 35% डिस्काउंट में, 30% डिस्काउंट में है। तो हम लोग का बाइंग रेंज हमारा, जिसको बोलते हैं ना कि हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो काफी अच्छी है। बोलते हैं कभी भी, वॉरेन बफेट का एक नॉर्मल इंडिकेटर है क्या, इफ यू कैन बाय समथिंग एट 30% चीपर देन द फेयर वैल्यू, तो दैट इज अ ड्रीम बाय। तो अभी भी हम लोग ड्रीम बाय रेंज में अभी हम लोग हैं। तो सेल इस टाइम पर शायद ऑब्वियस आंसर होगा सबके लेकर, इट्स ए नो।
बट किंतु जो सेकेंड पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग. आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका अभी के टाइम पर रीस्ट्रक्चर करना. आपके जो भी स्टॉक्स लिए हुए हैं आज के टाइम पर वो आपको ब्लू चिप लग रहा होगा या आपको वो कंपनी बहुत अच्छी लग रही होगी, किंतु आपका इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल के लिए है. याद कीजिए 2008 में जब मंदी आई तो इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स थे? आर पावर, यूनिटेक, सुजलॉन, आरकॉम, और कुछ नाम बताऊं आपको, दर्द आएगा, फिर वहां पर फील होना शुरू होगा. तो वैसे स्टॉक्स थे जो कि आज मार्केट 500% उसके बाद ऊपर हो गया और वो 90% डिस्काउंट में, 80% डिस्काउंट में, और ये खत्म भी हो गए. और सेम यदि हम लोग 2000 में देखें तो पेंटासॉफ्ट, सिल्वर लाइंस, अब नाम याद करो, दे आर नॉट देयर. तो अभी आपके पास कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि वैसे स्टॉक्स बन सकते हैं? या फिर यदि मार्केट यहां से रिकवर किया तो उस समय अलग, आप 2008 के पीरियड में इंडस्ट्रियल्स चल रहे थे. उस टाइम पर इंडस्ट्रियल्स में बड़ी मूवमेंट थी, मटेरियल्स में काफी बड़ी मूवमेंट थी, फार्मा में मूवमेंट थी, किंतु उसके अगले 5 साल में वो सब सेक्टर चले ही नहीं. तो अभी के टाइम पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगला कौन से सेक्टर चलने वाले वो आपको नहीं पता है. तो वन थिंग दैट यू कैन डू, दैट यू शुड डेफिनेटली डू, कि आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आपको करना ही चाहिए. उसमें अभी हमारा गोल्ड माइन के, आप वहां पर आप यदि आप उनके क्लाइंट हो तो गोल्ड माइन में अभी ये रिपोर्ट अभी ऑलरेडी बन रही है, जहां पर आपके हर क्लाइंट के लेकर आपकी 3 स्टेज की रिपोर्ट बन रही है. एवरी क्लाइंट, फॉर एवरी क्लाइंट. अब हम लोग भूल जाते हैं पूरा पुराना डिस्कशन. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इस मंदी में हेल्थ का इशू है, पैसा कमा सके हम लोग, उसमें हम लोग फोकस करते हैं. तो वन थिंग जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, आप जितने भी अच्छे इन्वेस्टर रहे हो, आपको देख करके जितना भी अच्छा स्टॉक लगता हो, आपको उस स्टॉक को एक बार एडवाइजरी के लेकर गोल्ड माइन में आपको उसको मेल करना चाहिए, या उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है. और ये आपके बिना बोले हुए भी अपने लोग यहाँ पर हर क्लाइंट लेवल पे अभी बहुत सी रिपोर्ट बन गई है, बाकी लोग के लिए भी बन रही है. एक एक क्लाइंट के लेकर 3 स्टेज रिपोर्ट बन रही है. वन इज क्रैश रिपोर्ट. मार्केट डाउन हुआ 14 जनवरी से अभी तक, आपका पोर्टफोलियो वर्सेस इंडेक्स, वर्सेस जो अभी जो कुछ मॉडल फंड्स चल रहे गोल्ड माइन में, उनका परफॉर्मेंस कंपेरिजन किया गया. मेन है आपका पोर्टफोलियो वर्सेस इंडेक्स. सरप्राइजिंगली हम लोग ने अभी तक पूरे इंडिया में जितनी भी रिपोर्ट बनाई है, क्रैश रिपोर्ट, सारे के सारे क्लाइंट्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स से खराब रहा है. दिस इज सो सरप्राइजिंग. दैट और नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इज दैट इज मोर देन 50,000 रिपोर्ट्स. फिर हमने क्या किया, इसमें सेकेंड स्टेज की रिपोर्ट बनाई, जिनका क्रैश रिपोर्ट में खराब परफॉर्मेंस रहा, उसमें फिर वो रिपोर्ट बनी क्या पोर्टफोलियो, ये क्या कारण से फॉल ज्यादा हुआ आपके पोर्टफोलियो में. और जब मार्केट यहाँ से रिवाइव करेगा तो आपके पोर्टफोलियो में कितना अच्छा पोटेंशियल है कि वो पार्टिसिपेट कर पाएगा ग्रोथ में. तो फिर हमने पोर्टफोलियो एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाई. आपको पता है गोल्ड माइन का इस मामले में बहुत क्लियर फोकस है, इन्वेस्टर फोकस शुरू से. हमारे और भी पार्टनर्स हैं, किंतु एक बहुत अच्छा लगता है हम लोग को गोल्ड माइन के साथ में काम करके, क्योंकि उनका शुरू से एक था कि हमारे लिए क्लाइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये जब रिपोर्ट बनने की बात आई तो वो भी काफी एग्रेसिवली एक एक क्लाइंट लेवल पे जाके, इट वाज अ ह्यूज एक्सरसाइज. आप समझ सकते हो कि एक एक क्लाइंट लेवल पे क्रैश रिपोर्ट बनाना, फिर पोर्टफोलियो एनालिटिक्स बनाना, उसके बाद एक एक क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल के बेसिस में उनको एडवाइस करना. ये रिपोर्ट बनी है, तो आप डिसीजन लेना आपके हाथ में, किंतु ये रिपोर्ट आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के लेकर. और जो नया इन्वेस्टमेंट यदि है उसका डिसीजन है, इसमें ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है. पहला है, क्या एक क्वेश्चन आता है, शुड आई इन्वेस्ट. तो इन्वेस्ट अभी के टाइम पर आप, जैसा हम लोग डिस्कस किए, यदि आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना है तो ये एक टाइम है जहां से जरूर आपको सोचना चाहिए. नॉर्मली जब हम लोग वेट करेंगे मार्केट ठीक हो जाएगा, न्यूज अच्छा हो जाएगा, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे. जब न्यूज अच्छी हो जाएगी तो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा. न्यूज अच्छी होना और शेयर प्राइस सस्ता होना ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया है. गुड परचेज प्राइस ऑलवेज कम्स विद बैड न्यूज. तो आपको बैड न्यूज में खरीदने की आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और ये अभी को एग्जिस्ट कर रहा है. ये टाइम, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज गुड टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग, टू गिव अ सीरियस थॉट टू इट.
यहाँ से रिस्क है आपके लेकर 20-25% नीचे जा सकता है, किंतु मार्केट 3 साल में जो पास का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मार्केट में 2008 के बाद में रिटर्न करीब 180% का रिटर्न आया था। अभी तक जितना देखें जिस हिसाब से यहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 80 to 100% का रिटर्न आना चाहिए अगले 3 साल में। तो एक साल में आपको 80 to 100% दिख रहा है, रिस्क आपको 20-25% का दिख रहा है। अब ये 20-25% का रिस्क भी क्या एक्चुअल रिस्क आ ही जाएगा, आपको नहीं पता है। मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, नहीं पता है। गिर जाएगा तो पूरा 20% गिरेगा, ये भी नहीं पता है। डाउन होगा तो 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, 20%, ये भी नहीं पता। डाउन होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं पता। अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका 80 to 100% का लॉस आपका पक्का है, क्योंकि आप राइजिंग मार्केट में आप बाई नहीं कर पाओगे, तो वो एक्चुअल लॉस होगा, दैट इज अ परमानेंट लॉस। अभी आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो क्या होगा, या तो मार्केट ठीक हो गया 5-7% डाउन होने के बाद आप पैसा कमा लिए, मैक्सिमम क्या होगा, मार्केट 10% डाउन हो गया तो आपकी होल्डिंग है तो 10 लाख की होल्डिंग आपको 1 लाख की लॉस दिखेगी, 15% हुआ 1.5 लाख का लॉस दिखेगा, किंतु वापस मार्केट 3 साल 5 साल 4 साल के अंदर में आप वापस ये आपका 10 लाख 18 से 20 लाख होने की उम्मीद है। तो रिस्क रिटर्न अभी बहुत फेवरेबल है। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक जो चीज सबको करनी चाहिए वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट के पहले यदि आपका एक्सपोजर 20% इक्विटी में था और 80% एफडी में और बाकी इन्वेस्टमेंट में था गोल्ड वगैरह लेकर के, अभी वो 20% से घट के यदि 14-15%, 16% जितने भी हो गया होगा, आप अपनी होल्डिंग देखो आप, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जितना भी परसेंटेज था 1 मार्च को, अभी वो परसेंटेज घट के, या फिर 14 जनवरी को या जनवरी के दिसंबर एंड में इक्विटी का जितना इन्वेस्टमेंट था, जितना परसेंटेज था, अभी वो घट के जितना कम हो गया, आप अगेन उतना परसेंटेज आप जरूर कर लो उसको। उसके लेकर आपको जो भी लिक्विडेट करना पड़े, नया पैसा लाना पड़े, ये रेशियो आपको कर लेना चाहिए। इसको एलोकेशन रिबैलेंस बोलते हैं। दुनिया में इस डिसीजन के कारण से सबसे ज्यादा पैसा बने हैं। आपको कितना बाई करना चाहिए उसके लेकर एलोकेशन, कौन सा कंपनी ले, क्या टाइमिंग करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर 20% फॉल में तो ये मैंडेटरी होता है, ऐसे हर साल करना चाहिए आदमी को, किंतु हर 20% फॉल के बाद तो रीबैलेंसिंग यदि कोई करता है तो लॉन्ग टर्म रिटर्न में इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो सेकेंड, फर्स्ट थिंग इज कैपिटल रिस्ट्रक्चर जरूर करना चाहिए, पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। सेकेंड, आपको आपका जो बैक टू आपका प्रीवियस एलोकेशन है इक्विटी का, उतना आपको कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज है, बहुत लोग जो एसआईपी चला रहे हैं, एसआईपी क्लोज करने का तो कर इस टाइम पर कोई चांस ही नहीं है। आपको एसआईपी अमाउंट कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर लेना चाहिए। यहाँ पर टेम्पलटन का न्यूज है या कुछ 2-4 घटना तो घटती रहेगी। टेम्पलटन में जो इशू है डेट मार्केट का, इक्विटी का नहीं है, और ऐसे तो घटना घटती रहेगी। हम लोग इसके लेकर रुक ही नहीं सकते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सी कंपनीज में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए तो सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस है। किंतु एसआईपी एज एन एसेट क्लास, एज ए व्हीकल, एज ए टूल आपके लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपकी बाइंग लोअर लेवल से होनी शुरू होगी, आपका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। अब फिर तीसरा क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कब पैसा लगाएं, अभी एक साथ लगा दें या धीरे धीरे लगाएं। तो इसका 2 तरीका हो सकता है। एक साथ भी पैसा लगाएं, आप वास्तव में 3 से 5 साल के लेकर निश्चिंत हो जाए और मार्केट को नहीं देखें डे टू डे, जो कि बहुत मुश्किल है। घर में रहते हुए दिन में मार्केट नहीं देखें, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। किंतु यदि वास्तव में 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आप एक साथ पैसा लगा लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है। आप 9,000 में पैसा लगाओ या 8,500 में लगाओ, यदि इंडेक्स को 18,000 होना है। दूसरा तरीका स्टैगर्ड, क्या आप एक साथ पैसा नहीं लगा के 3 पार्ट में पैसा लगा दो, 1/3 अभी लगा दो, 40% अभी लगा दो। फिर आपको लगता है मार्केट 20% यदि जा सकता है, जो भी आपको लगता है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 1/3 अभी, बाकी यदि 7.5% के नीचे गया तो और फर्दर 7.5% नीचे गया तो और। तो आप स्टैगर्ड भी कर सकते हो। यदि नीचे गया तो ठीक है, अदरवाइज आपका जितना इन्वेस्टमेंट आप उसमें कुछ पैसा कमाओगे। और कुछ ऑप्शंस भी यदि कुछ लोग काम करते हैं तो उसके लेकर मैं कुछ स्ट्रेटेजी है, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में ले लूंगा। तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लेकर ये 2 ही चीज है। क्या, वन इज आप एक साथ पैसा लगाओ, 3 से 5 साल भूल जाओ आप, आपको ये सेशन वापस याद आएगा क्या गोल्डमाइन ने बहुत राइट टाइम पर एक सेशन आपका करवाया था। किंतु आप यदि टीवी से, आप मुश्किल है टीवी से कंट्रोल करना अपने ईगो का, अपना जो इमोशंस को 3 पार्ट में कर सकते हो आप। और कहाँ पैसा लगाएं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो आप, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कशन किए इंडेक्स का डिस्कशन किए। इंडेक्स में आप पैसा लगाओगे तो आप कहीं पर आपको नुकसान करने का नहीं है, किंतु आप बेहतर कैसे कर सकते हो बाकी लोग से, उसके लेकर ये एक ऐसा टाइम आता है जहां से इंडेक्स से बेहतर रिटर्न मिलने की, जिसको अल्फा बोलते हैं,
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ये टाइम पर जब मार्केट बहुत ऊपर होता है तो इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए, किंतु जब इस लोअर लेवल में चल रहा है तो उस समय इंडेक्स के अवे फंड लगाना हमेशा बेहतर होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट इक्विटी, आप खुद एनालिसिस कीजिए, स्टॉक को लीजिए, आपको मजा आएगा देखने में। मैंने ये स्टॉक लिया है, मेरे पास HDFC बैंक है, तो कमाई भी होगी, आपको मजा बहुत आएगा। किंतु एक्सपीरियंस यही है कि लोगों का डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा है, इंडेक्स से खराब करते हैं वो लोग। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं आप, वो भी अच्छा है, किंतु म्यूचुअल फंड के अंदर में भी यदि आप लगाएंगे तो आपको बहुत जरूरी है देखना क्या कौन से स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं। और आप जो इक्विटी मार्केट के बारे में अभी सोच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले भी आप ही का पैसा लगा रहे हैं। तो अभी आप तेजी मंदी के ग्रिड से आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आपका उसी लेवल में बाइंग होने वाला। आप यदि वापस 12,000 में लोगे तो म्यूचुअल फंड स्कीम वाला कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूचुअल फंड के अंदर में, कौन सी स्कीम में पैसा लगाएं, इसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक ही स्कीम, जैसे मिड कैप के अंदर में एक स्कीम ने पिछले 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है, तो किसी दूसरे स्कीम ने 4% का रिटर्न भी दिया है। तो कौन से स्कीम में पैसा लगाएं वो जानना बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड में आप लगाएं तो जरूर एडवाइस लेके करें, डायरेक्ट इक्विटी में करें तो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन PMS है, 50 लाख से ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट का है, PMS में आप लगा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन इज मॉडल पोर्टफोलियो, जो आज के समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ये मॉडल पोर्टफोलियोज क्यों पॉपुलर अभी आज के समय में हो रखा है, या अच्छे PMS में भी क्यों पैसा लगाया जा सकता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक मैंडेट फिक्स होता है। क्या लार्ज कैप में फंड में आप पैसा लगा दिए तो फंड मैनेजर के पास उनको रिस्ट्रिक्शन है कि उनको लार्ज कैप में पैसा लगा के रखना है, मिड कैप में तो मिड कैप में लगा के रखना है। तो वो एक मैंडेट से वो उनके पास एक मजबूरी है कि वो ऐसा चेंज नहीं कर सकते। उनको लगेगा भी शायद अब मेरे को मिड स्मॉल में चल जाना चाहिए, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको मैंडेट है। मॉडल फंड्स में ये जो एडवाइजर्स होते हैं, मॉडल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या वो उसमें ट्विक कर सकते हैं। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम लोग ऐसा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उनके पास थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड अपनी जगह पर तो कर हमेशा अच्छी चीज है, बहुत अच्छा व्हीकल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लेकर। किंतु जो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी इच्छा है कि मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी रहे, और जो फंड मैनेजर क्या क्या बाई करने का रिकमेंडेशन करता है मैं उसको देखूं भी, और यदि कोई इसी स्टॉक को नहीं लेने की इच्छा है मेरी तो मैं ना भी कर सकूं, या तो वैसे इन्वेस्टर्स के लेकर ये एक मॉडल पोर्टफोलियोज काफी पॉपुलर है आज के समय में, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, और ये काफी अच्छा हो सकता है। और ये चारों व्हीकल के अंदर में कहाँ पैसा लगाना चाहिए आपको, कौन सी थीम में पैसा लगाना चाहिए, तो इसमें 2 थीम हम लोग को अभी आज के टाइम पर, एक तो मल्टी कैप में लगाना इज ऑलवेज, कभी भी वो नो ब्रेनर्स है। वो भी फंड अभी अपने गोल्ड माइन में आपके पास अवेलेबल है। हम लोग मॉडल फंड्स, गोल्ड माइन में कई मॉडल फंड्स चल रहे हैं अभी, उसमें से मल्टी कैप भी है, आप वहाँ भी पैसा लगा सकते हैं आप। और उसके अलावा जो 2 थीम हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है यहाँ से, उसमें से एक है मिड एंड स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप फंड नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जब मार्केट ठीक होता है तो पहले लार्ज कैप चलता है, फिर मिड एंड फिर स्मॉल। किंतु आप यदि देखोगे तो पिछला ये जो मिड कैप की और स्मॉल कैप की जो मंदी है, ये अभी जो मार्केट डाउन होना हुआ है 12,500 से, वहां से स्टार्ट नहीं हुई है। मिड एंड स्मॉल कैप की मंदी चल रही है 2018 से, और ये अपने और अभी जो रिसेंट 2018 के हाई से 67% डाउन हो चुका है। और मिड एंड स्मॉल कैप और जो लार्ज कैप निफ्टी का रेशियो के हिसाब से भी ये बाइंग रेंज में आया हुआ है। ये बहुत कम बार हुआ है, जब भी इस रेंज में आया है तो मिड एंड स्मॉल कैप में उसके बाद से बड़ी तेजी देखी गई। जैसे यहाँ पर एक बार आया था ये रेंज, यहाँ पर एक रेंज आया, तो जब जब ये रेंज आया वहां से बड़ी तेजी देखने को मिली है। हम लोग वापस उसी रेंज में आए हैं अभी मिड एंड स्मॉल कैप में। तो ये एक सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। पिछला 2 साल मिड एंड स्मॉल कैप के लिए बहुत खराब था, हम लोग उसी के बेसिस में हम लोग उसको अभी खराब मान रहे हैं। किंतु उसके पहले का 3 साल आप देखो, आप माइक्रो कैप में 77%, स्मॉल कैप में 76%, माइक्रो कैप 43%, उसके पहले ये, तो उसके पहले के 3 साल मिड एंड स्मॉल कैप के लेकर एक्सेप्शनली अच्छे थे। अभी 2 साल से खराब है, तो हम लोग का भी माइंडसेट है नहीं अभी तो शायद लार्ज कैप अच्छा करेंगे, तो लार्ज कैप भी अच्छा करेंगे। किंतु मिड एंड स्मॉल कैप में उम्मीद है आप कुछ पैसा यदि आपका लगा हुआ तो सर्टेन पार्ट आपका मिड एंड स्मॉल कैप थीम में जरूर लगना चाहिए। और दूसरी जो थीम अभी यहाँ पर जो अच्छी आउटप्ले कर सकती है, इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने की उम्मीद है, दैट इज इंडस्ट्री लीडर्स।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चीज को मैं सबको बोलूंगा कि आप इस थीम को जरूर से सोचना आप लोग। क्या अभी आप एक चीज देख रहे होगे आप, क्या हर इंडस्ट्री के अंदर में जो बड़े लोग हैं वो बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और तेजी से बड़े होंगे। उनके पास जो सप्लाई चेन का जो बेनिफिट होगा, लेबर का कॉस्ट का बेनिफिट होगा, कैपिटल का जो बेनिफिट होगा और जो लैंड्स का जो बेनिफिट होगा, और जो उनके पास आज जैसे फार्मा की आप कंपनीज करेंगे तो टॉप जो 10 फार्मा कंपनीज है वो 22% के हिसाब से ग्रो की है, तो बॉटम 10 की कंपनीज वो -22% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो विनिंग आज 48 इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर में विनिंग इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स में इन्वेस्टमेंट होना, वो लार्ज कैप कंपनी हो चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, टॉप 3 यदि वो इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है तो उसका मीडियम स्मॉल या लार्ज कुछ भी हो, और ज्यादा चांस होता है वो लार्ज कैप होती है, किंतु मिड भी हो सकती है स्मॉल भी हो सकती है, किंतु टॉप 3 इंडस्ट्री लीडर्स में पैसा लगाना, तो मिड एंड स्मॉल कैप में पैसा लगाना, इंडस्ट्री लीडर्स में पैसा लगाना, ये थीम आउटप्ले कर सकती है आने वाले टाइम में मल्टी कैप की तुलना में। हम लोग 3 से 5 साल के हिसाब से यदि बात करें, उसी अकॉर्डिंगली आप देखिए परफॉर्मेंस भी हम लोग देखें। जो अभी गोल्ड माइन में जो आपका जो फंड चल रहा है, मॉडल फंड्स ऑलरेडी हमने वहां पर लॉन्च किया है, और इसका जो रिटर्न रहा है ये अगस्त 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो करीब 8-9 महीने में ऑलरेडी करीब 2.5 से लेकर 17% का एक्स्ट्रा रिटर्न इंडेक्स से जनरेट हुआ है इस फंड्स में। मल्टी कैप फंड्स, न्यू इंडिया फंड, इंडस्ट्री लीडर्स फंड, स्मॉल कैप में 17% का एक्स्ट्रा रिटर्न, इंडस्ट्री लीडर में करीब 8-9% का एक्स्ट्रा रिटर्न। उससे भी जो बड़ी ब्यूटी इसकी क्या है कि मार्केट जब डाउन होना शुरू हुआ तो जब राइजिंग मार्केट में भी हम लोग अल्फा जनरेट किया और फॉलिंग मार्केट में भी हम लोग ने इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न आया इसमें। तो आप और भी कहीं भी आप पैसा लगाओ, किंतु एक चीज है ये जो अभी गोल्ड माइन में ये जो मॉडल फंड्स आपके सामने जो अवेलेबल है, इसका फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मिड एंड स्मॉल कैप का भी, इंडस्ट्री लीडर्स का भी, न्यू इंडिया का भी, मल्टी कैप का भी, और ये जो थीम्स आउटप्ले होने वाले हैं तो यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है, हमने पिछले 5 साल में भी कैसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किए उसका डेटा है। मिड एंड स्मॉल कैप जो अभी फंड वहां पर चल रहा है अभी गोल्ड माइन में, ये काफी डिसिप्लिन फंड है। इसके अंदर में हम लोग मिड एंड स्मॉल कैप में कैसे लेते हैं, स्मॉल कैप का मैक्सिमम एक्सपोजर 50% है, तो ये 20% तक मिनिमम रहेगा। ये एक पूरा डिफाइंड स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं, इंडेक्स से एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे करेंगे हम लोग और क्या तरीके से, ये मिड एंड स्मॉल कैप का। फिर इंडस्ट्री लीडर्स में भी हम लोग का, इंडस्ट्री लीडर्स के अंदर देखिए आप 15% का स्मॉल कैप भी होने की उम्मीद है, या हो सकता है कि हम लोग 10 से 70% तक मिड कैप भी ले सकते हैं वहां पर, और 30 से 90% हमारा ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रेंज हम लोग मूव कर सकते हैं। 15% से ज्यादा स्मॉल कैप नहीं होगा इंडस्ट्री लीडर्स में, किंतु मिड कैप 10% से 70% भी हो सकता है, चाहे 70% होगा और 15% मिड कैप स्मॉल कैप है, तो हो सकता है हम लोग उस समय लार्ज कैप कम लेंगे हम लोग। तो ये रेंज के हिसाब से इसमें मिक्स रहता है, और इसका परफॉर्मेंस पास्ट में भी अच्छा रहा है और आने वाले टाइम में हम लोग को बहुत अच्छी इसमें उम्मीद लग रही है। अब दूसरी बात है कि ये जो हम लोग का परफॉर्मेंस आया है ओवरऑल, ये तीनों थीम में जो परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा रिटर्न हम लोग जनरेट किए हैं, ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ये कोई बाई चांस नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ क्या कोई हम लोग स्टॉक्स को सुन करके कुछ कोई फंड मैनेजर का कोई डिसीजन था, कुछ सोच करके बाइंग करती है। ये बहुत डिजाइन के हिसाब से बनाया हुआ है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। ये करीब 22 साल से हम लोग बना रहे हैं इसको। इंडिया में मॉडल फंड बनाने वाली हम लोग इंडिया की सबसे पुरानी शायद कंपनी है। पिछले 11 साल में हम लोग रियल टाइम में मॉडल फंड रन कर रहे हैं, ये बैक टेस्टेड डेटा नहीं है। यहाँ पर हमने पिछले 11 साल में करीब 8% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट किया है इंडेक्स की तुलना में, पर एनम 8% का एक्स्ट्रा जनरेट किया है। और ये जनरेट होने के पीछे कोई चांस नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। हम लोग इसमें किसी कंपनी को लेने के लेकर कौन सी कंपनी हम लोग लेते हैं, कंपनी का सिलेक्शन में प्योर बिजनेस हम लोग करते हैं, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक रिसर्च का एक फ्रेमवर्क हमारा, जिस रिसर्च में हम लोग लेते हैं कौन सी कंपनी लेते हैं, उसमें ग्रोथ देके हम लोग, ऐसा नहीं होता कोई कंपनी अचानक ग्रोथ करने वाली है उसको सिलेक्ट कर ली है, उसमें सिलेक्शन करते समय धीरे धीरे बिजनेस लगातार अच्छी बढ़ रही है, वो बनिया की तरह बिजनेस कर रही है, कैसे पैसे का अपना यूज कर रही है उसको करते हैं कंपनी का। फिर वो जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है वो उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है
उसका डिमांड किस हिसाब से बढ़ने वाला है, उस डिमांड के अंदर में कौन सी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होने वाला है, उस कंपनी का मैनेजमेंट उस बिजनेस मॉडल को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसके पास क्या यूनिक एडवांटेज है, उसके हिसाब से वो कैसे अपना फंड फ्लो को मैनेज कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्लाइड है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी स्टॉक को हम लोग किसी से हमारा अफेयर नहीं है, ना हम लोग का मैरिज है, ना कुछ है, वी जस्ट डोंट मैरी एनी स्टॉक। हमारे लिए स्टॉक इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। हम लोग को जब भी होता है उसके हर 8% प्राइस के मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करते हैं। 8% मार्केट में अप हुआ, फिर 8% डाउन हुआ, हमारा फंड, हमारा स्टॉक उस सेक्टर की उस सेक्टर में उस 8% में कैसा परफॉर्मेंस था उसको हम लोग देखते हैं। पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में मेरे स्टॉक्स का एलोकेशंस में, सेक्टर का एलोकेशंस में, रिस्क के यदि कोई एक यूनिक चीज बोलेंगे यदि हमारे मॉडल फंड्स के अंदर में है तो दैट इज रिलेटेड टू फंड मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग इक्विटी ऑलरेडी एक रिस्की एसेट क्लास है, इसमें आपके इंडेक्स की तुलना में हम लोग हायर रिस्क नहीं ले लें तो रिस्क को हम लोग काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग जो 15 दिन में हुआ करती थी, अभी हम लोग एवरी डे हम लोग मिल रहे हैं ताकि ये कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल एंड विश यू ऑल अगेन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Krishna sir. That was very insightful, how Indian economy will do and how to invest, where to invest in the equity. Now, I will request Mr. Samir Gandhi ji to please give his views on today's webinar. Thank you very much. Samir sir, over to you, please. गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू कृष्णा जी, आपने बहुत ही अच्छी, आपका जो प्रेजेंटेशन हुआ, आपके टीम की बहुत अच्छी मेहनत दिखती है इसमें, आपका कितना इन डेप्थ रिसर्च है। थैंक यू वेरी मच। હવે થોડું આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીશ કેમ કે આપણે બધા ગુજરાતના છીએ, ગુજરાતથી જ છીએ, કૃષ્ણાજીની પરમિશન મેં લીધેલી છે। આજે અત્યારનો આપણો જે લોકડાઉનનો પીરિયડ ચાલી રહ્યો છે, લગભગ આપણે લોકો 40 દિવસથી ઘરે છીએ, પોતપોતાના કામ ધંધા બંધ છે અને આવનારા 2 વીક અગેન ફરીથી આપણને લોકડાઉન મળ્યું છે। તો આ સમયના પીરિયડની અંદર આપણા મગજમાં જાતના મીડિયાથી ઘણી બધી નેગેટિવ ન્યૂઝ અને એ બધું આપણે ઇકોનોમીના રિલેટેડ સાંભળતા રહીએ છીએ કે ઘણી બધી આપણી લેબર ફોર્સ પાછી પોતાના વતનમાં જતી રહી છે, ઘણી બધી રાજ્ય સરકાર બાકી રહેલી વર્કફોર્સને પોતાના હોમ સ્ટેટમાં જવા માટેની વ્યવસ્થાઓ કરી રહી છે, મતલબ કે વર્કફોર્સ બધી ઘરે પહોંચી જશે। માર્કેટમાં પૈસા ફરતા નથી તો લિક્વિડિટી નથી, તો આવનારા સમયમાં બધા બિઝનેસ અથવા તો ઇકોનોમી ફરીથી કેવી રીતે ચાલુ થશે અને ક્યાંથી ચાલુ થશે? સાદી ભાષામાં કહીએ તો બધાને એવું છે કે આ મોતીના માળા છે અને એના મણકાઓ વેરાઈ ગયા છે, આ ફરીથી કેવી રીતે પૂરવાશે? આ બધા જ પ્રશ્નોની સામે આપણે ઘણી બધી વસ્તુની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ રહેલી છે। એક્સપિરિયન્સ અમારું એવું કહે છે કે જ્યારે માર્કેટ વન વે તેજી તરફ જતું હોય છે ત્યારે નેગેટિવ ફેક્ટર બધા ડિસ્કાઉન્ટ થઈ જાય છે, કોઈ એના તરફ જોતું નથી। લાઇકવાઇઝ માર્કેટ જ્યારે ઘણી મંદીના ફેઝમાં આવી જાય છે ત્યારે ઘણી બધી સારી વસ્તુઓ પણ બને છે, જેમ કે મેક્રો ઇકોનોમી ઉપર શું ચેન્જ થયા છે, થઈ રહ્યા છે, સ્ટ્રક્ચરલ વેમાં દેશમાં કયા કયા ચેન્જીસ થઈ ગયા છે અથવા થઈ રહ્યા છે, એની કૃષ્ણાજી આપણને બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી। થોડી વાત કરીએ તો આમાં હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્યાં છે અથવા તો આવનારા સમયમાં ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બની શકે છે, તો કયા પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ છે જે અત્યારે બન્યા છે કે બની રહ્યા છે? આપણે એવું વિચારીએ કે ઇકોનોમીમાં લેબર્સ નથી તો ચાલુ ક્યાંથી થશે? હું એવું વિચારું છું કે આપણો દેશ જ એવો છે કે જે તકલીફના સમયમાં તકલીફમાંથી બહાર નીકળવાનું કામ આપણે જાતે શીખ્યા છીએ। ડેવલપ નેશનની વાત કરીએ તો અમેરિકા કે યુરોપની અંદર તો તકલીફ વખતે સરકારને લોકો યાદ કરે છે, જ્યારે આપણા કેસમાં આપણે લોકો સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છીએ, સરકાર પણ કામ કરશે અને આપણે લોકો પણ કામ કરીશું। તો વર્કફોર્સ તો પાછી આવી જ જવાની છે, કદાચ 4 વીક કે 6 વીક કે 8 વીક વધારે લાગી શકે છે। બીજી વાત કરીએ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ચાઇનામાં જેટલા મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝ છે એ ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે ત્યાંથી મૂવ થઈ અને કોઈક બીજા કન્ટ્રીમાં જવું। હવે એક જગ્યાએથી મૂવ થઈને બીજા કન્ટ્રીમાં જવા માટેના રસ્તાઓ અથવા તો કઈ જગ્યાઓ છે, તો મે બી વિયેટનામ છે, ઇન્ડોનેશિયા છે, થાઈલેન્ડ છે, મલેશિયા છે અથવા તો ઇન્ડિયા છે। ઇન્ડિયામાં આવવાની શક્યતાઓ કેટલી? આપણે એમનેમ વાત ના કરીએ પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલથી વાત કરીએ તો અત્યારના આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારે
ટાટા નેનોનો સાણંદનો જે પ્લાન્ટ એસ્ટાબ્લિશ થયો એને કેટલો ફાસ્ટ પશ્ચિમ બંગાળમાંથી ગુજરાતમાં મૂવ કર્યો, કેટલી ફાસ્ટ બધી અપ્રુવલ્સ જનરેટ કરી, એ આપણે બધા જોઈ શક્યા છીએ અને ઇટ ઇઝ જસ્ટ અબોવ એક્સેલન્સ. તો હવે એ જ વસ્તુને ફરીથી આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ કે આવનારા સમયમાં બહારના દેશોમાંથી 100-200 કંપનીઓને આપણે રેડ કાર્પેટ બિછાવીને જો અહીંયા લાવી શક્યા તો બની શકે કે આખો ઇકોનોમિક સિનારીઓ બદલાઈ જાય અને સેન્ટિમેન્ટ પણ ચેન્જ થઈ જાય. એક એક્ઝામ્પલ વધારાનું આપું તો સેમસંગ કંપનીએ પોતાની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝ વિયેટનામમાં કરેલી છે. તમને નંબર્સ જાણીને નવાઈ લાગશે કે આખા વિયેટનામ કન્ટ્રીની ટોટલ જીડીપીના 28% ટોટલ માત્ર સેમસંગનું પ્રોડક્શન અથવા તો સેલ્સ છે. હવે આવો ઓપોર્ચ્યુનિટી અથવા તો બેનિફિટ જો આપણા દેશમાં આવે તો પરિસ્થિતિઓ કેટલી બધી બદલાઈ શકે છે. એ ઉપરાંત એવી શક્યતા પણ છે કે કંપનીઓ પોતે આવે, તે ઉપરાંત ઘણી કંપનીઓ એવું ઈચ્છે કે ઇન્ડિયાની અંદર કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ તરફ આગળ વધીએ. તો એ કેસમાં પણ કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ નંબર્સથી એવું લાગે છે ઇટ મે ગ્રો 10 times ઇન કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ. ત્રીજો પોઈન્ટ લઈએ તો બધા જ કન્ટ્રીઝ પોતપોતાના દેશમાં 10% થી 20% સુધીના સ્ટિમ્યુલસ આપી ચૂક્યા છે. સુખી દેશ છે એટલે વધારે પૈસા ખર્ચી શક્યા છે. આપણે આપણી વાત કરીએ તો આપણા દેશમાં હજી તો લેસ ધેન 1% પૈસા સરકારે ખર્ચ્યા છે અને ગવર્મેન્ટ જે પ્રમાણે કમિટેડ છે એ પ્રમાણે આગળના સમયમાં હજી બીજા પૈસા માર્કેટમાં આવતા રહેશે. ચોથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરું તો આપણા દેશનું જે ફોરેક્સ રિઝર્વ છે એ બહાર જવા માટેના બે જ પોઈન્ટ છે. વન ઇઝ ગોલ્ડ, અનધર ઇઝ ક્રૂડ ઓઇલ. ક્રૂડ ઓઇલની વાત કરીએ તો આપણે બધા જોઈએ છીએ કે ક્રૂડ ઓઇલ અત્યારે માર્કેટમાં લગભગ ઓલ ટાઈમ લો ઉપર છે. પાણીના ભાવે ક્રૂડ પહોંચી ગયું છે. તો ક્રૂડ થકી આપણા બહાર જતા પૈસા ઘણા બધા બચી ગયા. લાઇકવાઇઝ અમે લોકો પોતે પણ ગોલ્ડ સિલ્વરની અંદર ફિઝિકલ માર્કેટમાં હોલસેલ કામ કરીએ છીએ, થોડાક માર્કેટને નજીકથી જાણીએ છીએ, જોઈએ છીએ. છેલ્લા 6 મહિનાથી લગભગ દેશમાં બહારથી ગોલ્ડ આવતું ઘણું બધું ઘટી ગયું છે. કારણ ઘણા બધા હોઈ શકે, લાઈક ગવર્મેન્ટ અત્યારે ડોમેસ્ટિક ગોલ્ડ રિસાયકલિંગને ઘણું સરસ પ્રમોટ કરી રહ્યું છે, ભાવ પણ વધી ગયા છે. કારણ ગમે તે હોય પણ ગોલ્ડના થકી બહાર જતું પેમેન્ટ, આપણું જે ફોરેક્સ રિઝર્વ છે એ ઘણું બધું કંટ્રોલમાં આવી ગયું છે. હવે આવા ઘણા બધા ચેન્જીસ માર્કેટમાં જે બની રહ્યા છે અથવા તો બનવાના છે, એ સમયે આપણો પોર્ટફોલિયો કેવી રીતનો રીસ્ટ્રક્ચર થયેલો હોય તો આપણે આ બધી વસ્તુના ફ્રૂટ્સ મેળવી શકીએ. હવે જેમ કૃષ્ણજીએ વાત કરી એમ જો આપણે આપણા ટ્રેડિશનલ અથવા તો કન્વેન્શનલ વેથી જ ઇન્વેસ્ટેડ રહ્યા તો આપણી પાસે 2000ની મંદી પછી તેજી થઈ, 2008ની મંદી પછી પણ પાછી તેજી થઈ. પણ જો તમારી પાસે અગાઉ આપેલા એક્ઝામ્પલ મુજબના 2000ની સાલના પેન્ટાફોર સોફ્ટવેર, સિલ્વર લાઇન, ડીએસક્યુ સોફ્ટવેર એવી કોઈ પણ વસ્તુ હશે અથવા 2008ની સાલના આર પાવર, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા કે સુઝલોન હશે તો તમારો પોર્ટફોલિયો બહાર નહીં જ નીકળ્યો હોય. સારા સ્ટોક્સની વાત કરીએ ને તો 2000ની સાલમાં ટોપ પ્રાઇસ ઉપર લીધેલો ઇન્ફોસિસનો શેર પણ 10 વર્ષ સુધી એફડીઆર નું ઇન્ટરેસ્ટ આપી શક્યો નથી. લાઇકવાઇઝ 2000ની સાલમાં વન ઓફ ધ બેસ્ટ સ્ટોક એલએનટી, જે લગભગ 4400 થી 4500 ના ભાવ ઉપર ઘણો લાંબો સમય રહ્યો, એ સ્ટોક પણ એના સ્પ્લિટ અને બોનસ સાથે આજની તારીખમાં એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિટર્ન આપી શક્યો નથી. તો હવે આ ટ્રેડિશનલ અથવા તો આપણી કન્વેન્શનલ સ્ટાઇલને છોડી અને આપણે લોકો નવા વેને પકડી શકીશું. અત્યારે હું એક ક્રિકેટની એનાલોજી ઉપરથી આને કમ્પેર કરવા માંગુ છું. થોડુંક સરપ્રાઇઝિંગ લાગશે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ there are two style, હું એને ડિફરન્શિએટ કરું છું. there are two style of batting. one is સહેવાગ સ્ટાઇલ, વિરેન્દ્ર સહેવાગ સ્ટાઇલ, another is રાહુલ દ્રવિડ સ્ટાઇલ. હવે સહેવાગ એવો બેટ્સમેન છે કે જે કોઈ પણ બોલને કોઈ પણ દિશામાંથી કોઈ પણ દિશામાં બાઉન્ડ્રી ફટકારી શકે છે. એની પાસે ગોડ ગિફ્ટ છે, મહેનત પણ કરેલી છે, પ્રેક્ટિસ પણ કરેલી છે, તો એ સહેવાગ છે. બીજો સહેવાગ હોઈ શકે કે કેમ, ઇટ ઇઝ વેરી રેર. બીજો ક્રિસ ગેલ હોઈ શકે પણ બીજો સહેવાગ હોઈ શકે. હવે આ જ રીતને ફરીથી બીજી જગ્યાએથી આપણે રાહુલ દ્રવિડ સ્ટાઇલ જોઈએ તો દ્રવિડની એકદમ કન્સિસ્ટન્ટ અને સિસ્ટમેટિક વે ઓફ બેટિંગ છે કે કોઈ પણ બોલ તમે એમની સામે ફેંકો તો એને કેવી રીતે રમાય એ જાણે છે. હવે આ સ્ટાઇલ ઉપર જે લોકો એકદમ ટેકનિકલી, કન્સિસ્ટન્ટલી, પ્રેક્ટિસથી પોતાની જાતને ગ્રો કરી શક્યા તો એવા નામ એ સ્ટાઇલના ઢગલાબંધ મળશે. લાઈક સચિન તેંડુલકર, વિરાટ કોહલી, બ્રાયન લારા, વિવિયન રિચર્ડ્સ, સ્મિથ, ઢગલાબંધ નામ મળી શકે છે. હવે આપણે આપણી જગ્યાએથી એવું નક્કી કરીએ
કે આપણે અત્યાર સુધી જે પ્રયત્ન કર્યો આપણા પોતાના પૈસાથી, આપણા પોતાના ફંડથી, એ સહેવાગ સ્ટાઇલ એફર્ટ કર્યો છે કે પછી રાહુલ દ્રવિડ સ્ટાઇલ એફર્ટ કર્યો છે? કૃષ્ણાજી જે આપણને સજેસ્ટ કરી રહ્યા છે એ રાહુલ દ્રવિડ સ્ટાઇલ સજેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે જેમાં આપણા સક્સેસ જવાના ચાન્સ ઘણા વધારે છે. બીજો સહેવાગ બની શકે કે કેમ, ઇટ્સ એ ક્વેશ્ચન, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ અ રાહુલ દ્રવિડ સ્ટાઇલ, ઘણા બધા સક્સેસ મળી શકવાના ચાન્સ છે, પ્રોબેબિલિટી છે. હવે બીજું ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય છે કે શેર બજારમાં જ પૈસા કેમ રોકવા? તો એમના માટે એક વાત કરું કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના એવેન્યુઝ આપણા દેશમાં કેટલા છે. તો આપણી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવેન્યુઝમાં આપણે મોટા ભાગે રિયલ એસ્ટેટની વાત કરીએ છીએ, બીજું ફિક્સ્ડ ઇન્કમની વાત કરીએ છીએ, રિયલ ઇક્વિટી માર્કેટની વાત કરીએ છીએ. રિયલ એસ્ટેટની અંદર પણ બધા ફાયદા છે અને ગેરફાયદા છે. રિયલ એસ્ટેટ પણ સારું રિટર્ન આપે છે, એમાં ડાઉટ નથી, પણ રિયલ એસ્ટેટમાં આવા જે અત્યારે આપણો છેલ્લો સમય જોયો એમાં લિક્વિડિટી મળી શકશે? ના. શેર બજાર ઇક્વિટી એવો ક્લાસ છે કે જે તમને એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ 100 ના 80 થશે કે 70 થશે, પણ પ્રાઇસ મળશે, લિક્વિડિટી મળશે અને પૈસા મળશે. બીજું ફિક્સ્ડ ઇન્કમ છે. તો જો તમે બેંકમાં પૈસા રોકશો તો એ માત્ર તમને 5% 6%ની આસપાસનું બેંક એફડી રિટર્ન આપશે. બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ જો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો એમાં રિસ્ક ઘણું બધું છે, જે રિસ્ક લેવા માટેની આપણી પ્રિપેર્ડનેસ છે કે નહીં તે આપણે જોવી પડે. અને ગોલ્ડ પણ એક એસેટ ક્લાસ છે જેમાં આપણા દેશમાં લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, પણ એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હું માનું છું ત્યાં સુધી માત્ર ને માત્ર પોતાના હોમ કન્ઝમ્પશનના માટે અથવા તો તહેવાર પ્રસંગ એના માટે આપણે બસાવીએ છીએ. ગોલ્ડ 1 કિલો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે લઈ રાખ્યું એવો વર્ગ આપણે ત્યાં લગભગ નેગ્લિજિબલ છે. માત્ર એટલું જ લઈએ છીએ જેટલું આપણને ભવિષ્યમાં ખપ પડવાની શક્યતાઓ છે. છેલ્લો જે ગોલ્ડનો 32,000 થી 45,000-48,000 ની રેન્જનો જે રનઅપ આવ્યો, ધેટ વોઝ એક્સેલન્ટ. અધરવાઇઝ અમે એવું માનીએ છીએ કે એ માત્ર ઇન્ફ્લેશન તમને બીટ કરી આપે. ઇન્ફ્લેશનથી ઉપર રિટર્ન તમારે કમાવવું હોય તો ઇક્વિટી જ એના માટે એક સારામાં સારો ઓલ્ટરનેટ છે. હવે ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે આપણે અત્યારે ઘણી બધી રીત જોઈ કે કેવી રીતે કામ કરી શકાય છે. રિસ્ક તમારું કેવી રીતે તમે ડાઉન કરી શકો છો. ગોલ્ડમાઇન તરફથી વારંવાર નોલેજ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન તમને બધાને અમે શેર કરતા રહીએ છીએ. મોટા ભાગે ઇન્વેસ્ટર્સ જે મિસ્ટેક કરતા હોય છે તે મિસ્ટેક કેવી રીતે ઓછી કરવી અથવા તો એ મિસ્ટેકને અવોઇડ કરીને પણ તમારા લોસને તમે કેટલો બધો ઘટાડી શકો છો એ પણ અમે લાસ્ટ ટાઈમ શેર કરેલું છે. જો આપ ફરીથી રિફર કરવા માંગો તો ગોલ્ડમાઇનની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપને મળી જશે. આ ટર્બ્યુલન્ટ ટાઈમ પછી આપણે લોકો ઘણી બધી વસ્તુ બદલાવાના છીએ. લોકોની એક્સપેન્સ કરવાની જગ્યાઓ બદલાશે, જરૂર કરતા વધારાના ખર્ચ બદલશે, જે અફોર્ડ કરી શકે છે કે જે અફોર્ડ નથી કરી શકતું એ બધામાં બદલાવ આવશે. સેવિંગ્સ વધશે. કોર્પોરેટ્સ કે બિઝનેસ હાઉસીસ પોતાના ડેટ ઘટાડવાના પ્રયત્ન કરશે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ હશે તો પોતાના પાસે સેવિંગ્સ વધારશે કે જેથી ફરીથી આવો કોઈ ખરાબ સમય આવે તો લિક્વિડિટી અથવા તો બ્રેડ એન્ડ બટર માટે પણ તકલીફ ક્યારેય ના પડે. અને આ બધી જ વસ્તુ બદલાશે તો આપણે સાથે એવું પણ પ્લેજ કરીએ કે આપણા પોતાના પૈસા છે, આપણે આપણા પોતાના પૈસા માટે પણ થોડો બદલાવ લાવીએ. આપણા પોતાના પૈસા માટે આપણે થોડોક ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરીએ. હવે 15 દિવસનો હજી ટાઈમ છે આપણા બધા માટે. આઈ વુડ હમ્બલી રિક્વેસ્ટ એવરીબડી કે તમે પ્લીઝ તમારા પોર્ટફોલિયો માટે થોડોક સમય આપો. પ્લાન કરો કે તમારે શું કરવું છે એન્ડ પ્લીઝ ડુ વોટ એવર યુ પ્લાન. તમે તમારા ફંડ માટે જે ચેન્જ કરશો એ તમારા માટે જ હેલ્પફુલ રહેશે અને એમાં જ્યાં પણ કોઈ પણ સપોર્ટ, ગાઈડન્સ અથવા એડવાઇસની જરૂર હોય અમારી ટીમ હંમેશા તૈયાર જ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓવર ટુ યુ નિલેશ. Thank you, Samir sir. This was also very insightful. Gold में invest करें कि equity में करें, कहाँ करना चाहिए, that is very good information you have shared with us. Now we have some questions. First, I will request Krishna sir. We have 2 or 3 questions for you, sir. With the participants. First question is this: the most important, I think, how you manages the stop losses in your fund management process. Over to you, sir. Sure. अभी जब मार्केट डाउन होता है तो अभी मैंने
शायद पिछले जितने दिन में शायद 25-30 कॉन्फ्रेंस की होगी, ये क्वेश्चन हर जगह आया है और ये वेरी नेचुरल है क्योंकि मार्केट अभी इतना डाउन है, तो सबसे पहले ये चीज आती है। देखिए ये एक इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस और एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस ये एक अलग डिसीजन है, किंतु स्टॉप लॉस का एक पॉलिसी बहुत क्लियर होना किसी भी इन्वेस्टमेंट के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर के लेकर एक स्टाइल होती है, वो भाई वो बेट लेते हैं क्या मैं यहाँ पर लूंगा तो मेरा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, उसके हिसाब से वो बेट्स लेते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड क्वांट पैरामीटर्स। इन इन्वेस्टमेंट हमारा कोई परसेंटेज का स्टॉप लॉस नहीं होता है कि हम लोग 10% नीचे जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, 20% नीचे जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ऐसा कोई हमारा फिक्स नहीं है। किंतु हमारा फोकस बहुत क्लियर क्या है कि हम लोग को मैच जीतना है और मैच जीतने के लेकर जो रन रेट हमारे ओपोनेंट की है और उससे हम लोग को ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं हर बॉल में अच्छा नहीं खेलूं तो चलेगा, मैं हर ओवर में कोशिश करूंगा, किंतु हर 5-5 ओवर में मैं देखता रहूंगा कि मेरा स्ट्राइक रेट ऐसा मेंटेन हो विकेट को सेव करते हुए कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या पूरे मार्केट को हम लोग जितनी भी मार्केट, मान लो यहाँ से आप यदि 50%, 100% का ग्रोथ होगा तो 100% स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, उसमें 8% का अप, 8% का जब ये अप डाउन कई बार होगा। यदि यहाँ से मार्केट को 100% अप होना है तो ऐसा सिचुएशन कम से कम 30 से 35 बार आएगा। तो हर स्टॉक में, इंडेक्स नहीं, हर स्टॉक में भी, जिसमें भी यदि 8% का मूव और उसके बाद का 8% का फॉल और राइज का मूवमेंट में वो यदि अपने इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मेरा एम है ओवरऑल इंडेक्स से ज्यादा पैसा कमाना। यदि इंडेक्स ने 80% का रिटर्न देगा 3 साल में, हमारा एम होगा कि हम लोग 100% ग्रो करें, हम लोग मोर देन 80% ग्रो करें। हम उसके लेकर हमारे हर स्टॉक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर बैट्समैन को मेरे को कंट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही अंडर परफॉर्म करेगा, जैसे 2 साइकिल में 8% राइज में भी वो अंडर परफॉर्म किया, फॉल में भी अंडर परफॉर्म किया, हम लोग उस स्टॉक से निकल जाते हैं हम लोग। और दूसरा इसमें होता है क्या, स्टॉप लॉस कंपनी लेवल पे कैसे करते हैं हम लोग, कोई कंपनी का प्राइस हम लोग को लगता है कि उसका फेयर वैल्यू से वो काफी ऊपर चला गया, कोई न्यूज आई कुछ भी कारण से उसका यूफोरिया बना, इंडेक्स में स्कोप है किंतु उस स्टॉक में स्कोप नहीं है, तो वैल्यूएशन का गैप नहीं रहता, तब हम लोग उसको बेच के निकल जाते हैं। तीसरा हम लोग स्टॉप लॉस कब करते हैं कंपनी में, यदि हमारा कंपनी का ये हो, हम लोग को कंपनी को लगातार वॉच कर रहे हैं और कहीं भी उसकी जो एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री का सेल्स या कहीं पर भी कंपनी का सेल्स, मैनेजमेंट में चेंजेस या कहीं पर उसके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का स्टाइल में कहीं भी हम लोग को लगे, उसमें लोग हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बना हुआ है, हर इंडस्ट्री का अलग अलग एनालिस्ट है, तो वहां पर जब भी डाउट होता है तब भी हम लोग उसमें एग्जिट कर जाते हैं। तो स्टॉप लॉस का हमारा 3 ब्रॉडर पैरामीटर है, उसके बेसिस में हम लोग एग्जिट करते हैं, कोई फिक्स्ड पहले से डिटरमाइन नहीं होता। Okay, sir. Okay, sir. Hello. The second question for you, sir, is one of an participant asked that how we can find an entry and exit point and how they can analyze their portfolio for restructuring. How entry and exit? Entry and exit point. Of investment or portfolio stock? Of investments. हाँ, एंट्री और एग्जिट में जैसे मैं आपको सबसे पहले, क्या आप यदि पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे भी हम लोग ने देखा, क्या हम लोग अभी जिस रेंज में चल रहे हैं ओवरऑल इंडिया का जो वैल्यूएशन का जो गैप है, हम लोग फेयर वैल्यू के करीब 25-30% अराउंड हम लोग डाउन साइड में चल रहे हैं। अब आप किसी का एनालिसिस के हिसाब से 30% डाउन होगा, 35% डाउन होगा, तो हमारा एम क्या होता है, क्या हमारा तो ऑनगोइंग फंड है, हमारे अभी टोटल 6 मॉडल फंड चल रहे हैं, तो वो 6 मॉडल फंड्स में से 3 हमारा ऑलमोस्ट रनिंग मॉडल फंड्स है जो ऑल टाइम के लेकर है, वो 3 हम लोग टाइम ड्रिवन है। क्या जब वो मार्केट में हम लोग को अपॉर्चुनिटी लगेगी तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी हम लोग लॉन्च करेंगे। तो यदि इंडिया ग्रोथ स्टोरी आपको 5 साल के लिए अच्छी लग रही है, आपका सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो। आप यदि 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो अभी का प्राइस बहुत अच्छा प्राइस है, और इवन यदि आप 5 साल के लेकर 12,000 में भी लेते हो तो भी अच्छा प्राइस है। किंतु आपका टाइम होराइजन यदि 2 साल का है तब बोल सकते हैं अभी का प्राइस ठीक है, आप यहाँ पर लगा सकते हो। किंतु आपका टाइम होराइजन 1 साल का है, 1 साल से कम का है, तो अभी का लेवल में भी नहीं पता है।
तो इसीलिए एंट्री पॉइंट क्या है, कब होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन पर। 3 साल 5 साल नॉर्मली लोग बोलते हैं इक्विटी में हमेशा अच्छा होता है, जबकि ये फैक्टर नहीं है। 3 साल 5 साल, आज यदि किसी ने 2014 में इन्वेस्टमेंट किया होता, मोदी जब जिस दिन ओथ लिए थे, उस समय से अभी तक 6 साल में रिटर्न निफ्टी का सिर्फ 27% एब्सोल्यूट रहा है, माने 2.5 से 3% का CAGR रिटर्न है। तो परचेज प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेकर। आज के समय का जो परचेज प्राइस है उसमें 3 से 5 साल वाले इन्वेस्टर के लेकर दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड टाइम। और एग्जिट के लेकर जब भी हम लोग को लगेगा क्या एक टाइम आएगा जहां पर इंडेक्स वाइज ही हम लोग इंडिया सस्टेन नहीं कर सकता उस तेजी को, वो टाइम शायद काफी दूर है इंडिया के लेकर। सो हम लोग को इंडेक्स लेवल पे एग्जिट करने की, हाँ स्टॉक वाइज जहां जहां पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग एग्जिट करते चल जाएंगे, किंतु इंडिया लेवल पे आई थिंक दैट टाइम इज फार। One more question, sir. One of an participant asked that this is a time for a short-term investment or a long-term investment. हाँ, ये उसी से रिलेटेड मैंने जो अभी बात किया उसी के हिसाब से इक्विटी में कभी भी अगला 3 महीना 6 महीना क्या होने वाला है, ये कभी भी जो फंडामेंटल्स के लोग होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, वो इस चीज को जज करने की कोशिश नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो आपका यदि टाइम होराइजन जेन्युइनली यदि आपका 1.5 साल से 2 साल से नीचे का है यदि, तो वो आपके लिए इक्विटी में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपका यदि मोर देन 2 इयर्स का है, अब ये चांस है यहाँ से हो सकता है 1 साल के अंदर ही मार्केट ठीक हो जाए। हम लोग को उम्मीद लगती है शायद 1.5-2 साल में मार्केट यहाँ से, हम लोग शायद अगले जून तक में हम लोग प्रीवियस जो हमारा हाई था उसके आसपास से, उससे ऊपर तो रहने की बहुत उम्मीद लग रही है। ये किंतु फिर भी उम्मीद है, एग्जिट कोरोना क्या होगा, दोबारा रिवाइव क्या करेगा, इसमें इतने इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरेटिकली एडवाइजेबल होता है कि आपका टाइम होराइजन कम हो तो आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, किंतु अभी आपका टाइम होराइजन यदि आपको 2.5-3 साल का है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर रकम से काफी अच्छा रहेगा, आपका रिटर्न ज्यादा अच्छा मिल सकता है। Thank you very much, sir. Sameer, sir, one of the question is for Goldmine too. One of an participant asked that how Goldmine is helping their clients for buying and selling decision, both for long term and for short term day-to-day trades too. Over to you, sir. જે લોકો લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે ઈચ્છે છે એમના માટે તો આપણી પાસે ઘણા બધા અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર્સ છે અને એમનો એક્ઝિસ્ટિંગ પોર્ટફોલિયો એ લોકો રીસ્ટ્રક્ચર કરાવવા માંગતા હોય તો એ લોકો આપણા રિસર્ચ ટીમનો અથવા તો જે તે બ્રાન્ચ થ્રુ કોન્ટેક્ટ હેડ ઓફિસનો કરી શકે છે, જેમાં જે કૃષ્ણાજીએ થોડી વાર પહેલા શેર કર્યું એ પ્રમાણે આપણે બધાનું એક હેલ્થ રિપોર્ટ જેવું જ તૈયાર કરીને આપીએ છીએ, જેની અંદર એમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છેલ્લા થોડા ટાઈમમાં કેટલું નિફ્ટીની સરખામણીમાં વધ્યું કે ઘટ્યું, અને વાઇઝ આપણું જે એડવાઇઝરી મોડેલ છે એમાં શું ફરક આવ્યો. જે લોકો શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ અથવા તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રૂપી કામ કરે છે એમના માટે આપણે પાસે આપણું ઇનહાઉસ રિસર્ચ છે, જેમ ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને ફંડામેન્ટલ્સના બેઝ ઉપર આપણે બધાને એડવાઇસ આપીએ છીએ. બધા ક્લાયન્ટ્સને વોટ્સએપ ઉપર આ બધા મેસેજીસ મળે છે. જો કોઈ પણ ક્લાયન્ટને વોટ્સએપ થ્રુ આ મેસેજ ના મળતો હોય તો પોતાની બ્રાન્ચનો કોન્ટેક્ટ કરી અથવા તો નિલેશને જ મેસેજ આપી અને પોતાનો નંબર અહીંયા એડ કરાવી શકે છે. થેન્ક યુ. As Sameer sir told, everyone is requested if they want to consult more, they can write our research team number, which is I am saying the number. This is a mobile number, that is 78189799167. I am repeating it again, 78189799167. Our research team is always be in your help, always there in your help. You can ask your question there, and there are many questions regarding particular stocks and emerging sectors. I think we can discuss this particular thing in during our personal to one telephonic call. So I think we should conclude here. Thank you both of our speakers. It was very insightful from both of you. And we get an overview on economical front, in micro and macro both front, and in where to and how to invest. That was the main point, I think, in this webinar. And thank you everyone for participating and joining us today. For your valuable time, thank you very much.
થેન્ક યુ. Thank you.